stage matches in Kabaddi. We are starting with the Pool A, where Maharishi Dayananda University, Rohtak is taking on VBS Purvanchal University, Jaunpur. This is Dr. Sunil Taneja in commentary box. And as always in Kabaddi, I'm honored to be joined by Mr. Sanjay Banerjee. धन्यवाद सुनील। पूल ए में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, ये 4 टीमें शामिल हैं। और अगर आप पूल बी पर नजर दौड़ाएं तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के अलावा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी और डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर छत्तीसगढ़ की टीमें हैं। अब तक का जो नज़ारा है सेमीफाइनल का, आप जानते हैं कि 3-3 मैचेस हर टीम को खेलने हैं और जो शेड्यूल है आज के मैचों का, पहला मुकाबला महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक और वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी जौनपुर के बीच है। इसके बाद अमृतसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी खेलेगी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के साथ, और दोपहर बाद के सेशन में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी का मुकाबला होगा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से, और आज के आखिरी मुकाबले में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भिड़ेंगे सीवी रमन यूनिवर्सिटी के साथ। सेमीफाइनल का सिनारियो, एमडीवी रोहतक और कोटा की टीम। एमडीवी तकरीबन बाहर हो चुके हैं, उन्होंने 2 मैचेस खेले, दोनों हारे हैं। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर भी कोई मैच नहीं जीत सकी है, उनकी भी संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। और उस ग्रुप से कोटा और बंसीलाल यूनिवर्सिटी ने तकरीबन सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। दूसरे ग्रुप का हालात, We'll definitely come to that. Right now, the referee Murli Kumar has signaled that the Veer Bahadur Singh University, I beg your pardon, the MD University, Rohtak have won the toss and they have decided that the other team is going to raid first. And talking about the other group, obviously, the GNDU, the Guru Nanak Dev University, is through to the semis. They have won 2 out of 2. While Kashi Vidyapith and Dr. C.V. Raman University have won 1 match each. And they are playing today, not with each other, but with the other teams. So this group, Pool A, is almost done and dusted. This is Sundar Raj, the umpire 2. Umpire 2 stands at one side of the court. The referee stands on the other side of the court with umpire 1. And first of all, the decision is given by the umpire 2, and that is copied by the referee and conveyed to the technical table. Both the teams are lining up for start of the match. This is MDU, Maharishi Dayanand University, Rohtak, supposedly a powerhouse of Kabaddi, Sanjay, but in their initial match, they were thrashed by the Kota University, 48-28, and then their state mates, Chaudhry Bansilal University, Bhiwani, beat them 37-25. Lost 2 out of 2, so they are out of the semi-final contention. So is their opponents, VBS Purvanchal University. They lost to Kota 43-38, and they lost their another match to Chaudhry Bansilal University 45-27. So this is like a match to decide which team finishes number 3 in the Pool A. बिल्कुल सेमीफाइनल की दौड़ से ये मुकाबला बाहर है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी वर्सेस वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी ने जब कबड्डी के इवेंट्स की शुरुआत हुई थी तो पहला मुकाबला खेला था और उसमें उसे शिकस्त मिली थी। लगातार 2 पराजय झेल चुकी है ये टीम, और जब आप 3 में से 2 मैचेस हार जाते हैं तो फिर अगले दौर में जाने की संभावनाएं तकरीबन खत्म हो जाती हैं। तो टीम ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा लगता है कि कई बार अनावश्यक दबाव ये ओढ़ लेते हैं, और रेडिंग में भी अगर आप देखें तो कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ दिखाई नहीं देती। डिफेंस थोड़ा सा टेंटेटिव है, जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता, और इन्हीं कमजोरियों की वजह से वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी अब तक अच्छा नहीं कर सकी है। The only silver lining for the VBS University is their main raider Lalit Chaudhary, jersey number 3, and looks like Lalit Chaudhary himself, who is starting the match. He's a left raider and one of the brightest stars of a Khelo India University games, but goes into the lobby, gets the commentator curse in the first raid itself.
बिल्कुल पहली One रेड point, में MD थोड़ा सा University. एक अपने आप को संभालने की जरूरत होती है। गति बहुत तेज थी, बिना किसी स्ट्रगल में गए वो लॉबी में चले गए और इसलिए उन्हें बाहर भी जाना पड़ा। तो सबसे बढ़िया जो उनका रेडर है टीम का वो बाहर जा चुका है और अब रेड पर आए हैं नितिन चिल्लर। नितिन चिल्लर के लिए 6 का डिफेंस है, बोनस की कोशिश कर सकते हैं नितिन, खासतौर से लेफ्ट कॉर्नर के सामने। लेफ्ट कॉर्नर पीछे जा रहा है, इन्विटेशन दे रहा है, बढ़िया डाइव किया, बहुत ही शानदार डाइव, थाइस पर गए विशाल और कामयाब हो गए। Excellent single thigh hold by the 1 right point cover for of Angel VBS. University. That was Vineet, nicely supported by Vishal. It was an After advanced an tackle, NOC, mind you, then you- but it's one each now. Raiders yet to score in this contest. This is Govind Pawar, Balraj. the right raider for VBS. इधर नहीं उधर। हाँ। Lalit Chaudhary is back onto the mat, but it was Govind Pawar who went to raid, and this is Vijay, another right raider for the MDU Rohtak. Tries for that kick on the left corner. Should be aware of the right cover number 11, Vineet Nan. Yes, he knew that Vineet Nan is in good form. Did not take any chance. Okay, third raider. This is Akash Sehrawat. First it was Lalit Chaudhary, then Govind Pawar. Now Akash Sehrawat. He will get a point for sure. तो धीमी शुरुआत 1 दोनों point टीमों पूर्वांचल की। यूनिवर्सिटी। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी इस समय बढ़त पर जरूर है, लेकिन वो बढ़त नाम मात्र की, और इस समय रेड पर जा रहे हैं विशाल जा रहे हैं रेड पर। विशाल के लिए 7 का डिफेंस है और इस समय बहुत ही बढ़िया टो टच किया विशाल ने, नजरों से नजरें मिलाई और कदमों को आगे बढ़ा करके हल्का सा टो पर मारा और बाहर कर दिया वहां विक्रांत को। Look at that. Classy. He was just looking for a target, and Vikrant, the right cover, the in-form defender, could not pull his toes back. Govind Pawar. No Lalit Chaudhary again. Lalit was out during the first raid, but he was revived very early. Yet to see him raid again. This is Govind Pawar. So right raiders now operating for VBS. Does a hand touch on Vishal, who was standing at the right in. 1 point पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। 3-2 से लीड है यहां पर, और एक बार फिर रेड पर हैं विजय। पूरा का पूरा डिफेंस एक लिमिटेड एरिया में उन्हें खेलने की इजाजत दे रहा है, और अच्छा फ्लेक्सिबल बॉडी है, फ्लेक्सिबल उनका एटीट्यूड है, तुरंत वो निकल करके आए कामयाबी के साथ। और एक बार फिर ललित चौधरी ज्यादातर रेड्स करते हैं अपनी टीम के लिए और एक बेहतरीन रेडर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनको सपोर्ट की जिस सिस्टम की जरूरत है, संभवतः रेडिंग में उस तरह का सिस्टम नहीं है। डैश करना चाहते थे, लेकिन कामयाबी के साथ ललित ने मिड लाइन को क्रॉस किया, और यहां पर डैश करने की कोशिश में विजय, जो कि थोड़ा सा लेट आए थे ललित के ऊपर, उन्हें खमियाजा चुकाना पड़ा, बाहर जाना पड़ा। So Lalit opens his account now. He was self out during his first raid. Opens his account now. This is Adarsh Singh raiding for the first time in the match. So both the teams are actually utilizing almost everybody in raiding, because at this level you will see plenty of all-rounders rather than a specialist raider or a specialist. Oh, look at that! This is a specialist double thigh hold. बहुत ही बढ़िया डबल थाइस पर गए और कोई मौका नहीं था। ललित यहाँ पर ऑलराउंडर का भी रोल अदा कर रहे हैं, पहले रेडिंग में और अब डिफेंस में, और अब सिर्फ 3 प्लेयर्स हैं, यानी कि सुपर टैकल की सिचुएशन ऑन है, लेकिन बैक थर्स्ट बिल्कुल मिड लाइन को क्रॉस किया गोविंद ने। गोविंद भी बढ़िया रेड्स डालते हैं अपनी टीम के लिए, और यहां उन्होंने बाहर कर दिया बहुत ही इत्मीनान के साथ नीरज को। Now eyeing for that all out is the Veer Bahadur Singh Purvanchal University, as they are facing Abhishek, jersey number 8. Abhishek is coming to the raid for the first time. He's primarily a defender, and as we were talking about, oh, look at the chain tackle. Fantastic defense by the VBS Jaunpur.
बढ़िया चेन टैकल, बिल्कुल मुस्तैद 1.4 मौजूद थे अंचल डिफेंस यूनिवर्सिटी। में। जैसे ही ललित ने बीच से निकलने की कोशिश की, चेन लेकर के आए और कामयाबी के साथ उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। विराज मलिक वहां पर मौजूद थे और उसके साथ ही ऑल आउट। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। तो बड़ा फासला, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर ने शुरुआती लीड ले ली है 10-2 की, लेकिन हमने इन मुकाबलों में इस तरह की लीड को कई बार पलटते हुए देखा है। इस समय विशाल Another point taken by the VBS Jaunpur. 1 point Purvanchal University. Signal by the referee and then the umpire. This is Vikrant. Reading for the second time. It was caught. Oh, look at caught again. Lalit Chaudhary yet again into the defensive duties, Sanjay. He is a good all-rounder. बहुत जबरदस्त पकड़ है ललित की, चेन छोड़ी और सीधे थाइस पर गए। और तारीफ करनी होगी बाकी डिफेंडर्स के भी सपोर्ट पर आए, समय से सपोर्ट पर आए। अन्यथा विक्रांत की जो पकड़ थी वो काफी तेज पकड़ थी। 12-2 से अब आगे हो गए हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के लड़के। And that gives some liberty for the other raiders to come. This is Vikrant dashed. Should be out. Should be out. I think he went into the lobby first and then he was dashed. Look at that. He went into the lobby. And the defender 1 point who came MD to dash University. him, well, he had touched him first before he himself went into the lobby. Nitin Chillar now reading. 6 का डिफेंस, बोनस की कोशिश यहां नितिन छिल्लर की। क्या उन्हें बोनस मिला है? फिलहाल वो जा रहे हैं और ये गिरफ्त में ले लिए गए। लेफ्ट कॉर्नर मुस्तैद थे, थाइस पर हाथ मारा और वहां से नितिन छिल्लर के लौटने की किसी भी गुंजाइश को खारिज कर दिया। बहुत ही बढ़िया पकड़, एकदम से चेन छोड़ी और पहले ऐसा लगा कि शायद वो हट रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, लेकिन एन वक्त पर आगे आकर के थाइस पर गए। Lead in double digits, 13-3. While on the other mat, the mat number 2, the court number 2, the defending champions Himachal Pradesh University are playing their first match. They are facing Bharati Vidyapeeth Pune, and Himachal Pradesh University is leading 43-17. The defending champions definitely doing what was expected from them. 13-3 की बड़ी लीड है यहां पर। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी लगातार पिछड़ते हुए रोहतक की टीम, जैसा कि सुनील ने बताया कि काफी मजबूत मानी जाती है ये टीम, लेकिन इनके ज्यादातर प्लेयर्स चूंकि अभी नेशनल कैंप में शिरकत कर रहे हैं और इसलिए इस मुकाबले में शामिल नहीं हो पाए हैं, तो उसका असर दिखाई दे रहा है टीम के ऊपर। Oh yes, definitely. And talking about HPU girls team, there at least a dozen of their players are in the national camp, which is going on in Sai Gandhinagar. And that is the story with MDU Rohtak as well. At least 4-5 of the MDU Rohtak players are in the national camp of boys that is happening in Delhi. It is the last day of the national camp, the first phase of the national camp. While MDU Rohtak, oh look at that dubki! Is it a super raid? अद्भुत डुबकी, जितनी आप तारीफ करें कम है। विजय वहां गए थे रेड पर और उन्होंने किस तरह से एन वक्त पर डुबकी लगाई, पूरे डिफेंस को चकमा दिया और शानदार तरीके से सुपर रेड लगा दी। 3 पॉइंट्स हासिल किए विजय ने। सुपर रेड मतलब कि एक रेड में जब आप आधा डिफेंस नाप दें तो वो सुपर रेड होती है। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, स्किल्स की तारीफ करनी होगी। You see J. Uday Kumar on the right and Javir Sharma on the left, two stalwarts of Indian Kabaddi. J. Uday Kumar is former Indian coach and Mr. Javir Sharma is the coach in the Sai Center, Gandhinagar. Two legendary figures in Indian Kabaddi. We also have Surjit Narwal sitting very close to them, the former Indian Asian Games gold medalist player. We'll try to talk to all of them during the... Oh, look at that escape, look at that escape. At least a couple. Bonus +1. So yeah, couple of points for sure. सबसे ज्यादा पॉइंट्स अब तक रेड्स में अगर आप देखें तो ललित को मिले हैं और ललित लगातार पॉइंट्स में न सिर्फ रेड में बल्कि डिफेंस में भी
विजय एक बार फिर जा रहे हैं और पिछली रेड आपको इनकी याद होगी, क्या शानदार डुबकी लगाई थी, 3 डिफेंडर्स एक साथ बाहर किए थे विजय ने। That should give him a lot of confidence. But they are back to fight. This is advanced tackle. This is unnecessary advanced tackle started by Lalit Chaudhary. He has got a couple of tackle points, Sanjay, but this was not required. 2 रेड में 2 5 points पॉइंट ले MD चुके हैं विजय। उनका पूर्वानुमान बहुत अच्छा है, वो जानबूझ करके डिफेंडर्स के सामने शफलिंग करते हैं और उसके बाद उन्हें अपनी मिड लाइन का अंदाज बहुत शानदार तरीके से होता है। रेड पर गए हैं अभी आयुष, और आयुष ने यहां पर एक शिकार किया। फासला थोड़ा सा कमा जरूर है, लेकिन अब भी अच्छा खासा फासला। Yes, the score difference of 8 right now. It went to 10. But thanks to those 2 multi-point raids by Vijay, MDU is breathing a little easier. This is Vineet Nain, the man with curls. Raiding for the first time in the defense of 4. We have never seen advanced tackle, but it is a combination tackle. Good call among the defenders. And they have got one revival. 1 point Purvanchal University. 17-8, 9 पॉइंट्स का फासला। आयुष आए हैं इस समय रेड पर। 5 खिलाड़ी डिफेंस में, यानी कि आयुष को बोनस नहीं मिलेगा। आयुष बराबर बीच में रेड्स डालते हैं, लेकिन लगातार नहीं। इनका एक वैकल्पिक रेडर के तौर पर टीम इस्तेमाल करती है। और इस बार यहां टो टच की कोशिश थी आयुष की, जिसमें संभवतः उन्हें कामयाबी मिली नहीं। और यहां से भी अब जा रहे हैं विजय, सबसे घातक रेडर। पिछली 2 रेड्स में 5 पॉइंट्स इनके नाम है। His dubki is definitely something that all the Kabaddi fans are going to watch again and again on the digital media. While all the eyes were on Lalit Chaudhary, and he has done fairly well, more in defense than raiding. But the star so far of the match is this raider, Vijay, for his back-to-back multi-point raids, for his super raid, for his classical dubki. आयुष की एक और रेड, और अब अभी सिर्फ आयुष ही हैं जो कि रेडर्स में टीम के अंदर मौजूद हैं, और लेफ्ट से रेड करते हैं आयुष। आमतौर पर राइट कॉर्नर इनके सामने जाकर के थोड़ा सा समय व्यतीत करते हैं और फिर अचानक से दूसरी तरफ आते हैं, लेकिन उनकी इस शैली को मुझे लगता है कि डिफेंस ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, इसलिए डिफेंस उन पर अनावश्यक टूटता नहीं है। And Lalit Chaudhary is still on the bench after that advanced tackle. He was playing at right in, did 2 really good tackles, but his team is using more raiders today, Sanjay. Earlier on, it was only Lalit who used to do 80-90% of the raids for his team. But today they are using perhaps more players because this is their last match of the tournament. Both these teams, VBS and MDU, will not go to the semi-finals. बिल्कुल इन दोनों के लिए स्टेक पर सेमीफाइनल की बात नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ विदाई इनके लिए फिलहाल दांव पर है। आयुष डाइव के शिकार हुए, जैसे ही बॉकलाइन के नजदीक अंदर आने की उन्होंने कोशिश की, लाइन्स पर गए, बहुत ही बढ़िया तरीके से चेन छोड़ी इनकी पोजीशन से और जबरदस्त प्रहार किया। आयुष वहीं पर धराशायी। In a defense of 4, and it's a do-or-die raid. The first do-or-die raid of the match, Sanjay. विजय डू-और-डाई में 4 का डिफेंस। विजय फिर से अपने पूर्वानुमान से निकले जरूर थे। डू-और-डाई में पूरा प्रेशर रेडर के ऊपर होता है। थोड़ा सा अंदर गए थे क्योंकि बिना पॉइंट्स के वो लौट नहीं सकते थे, और गिरफ्त तगड़ी बनी। विजय जहां थे वहीं ढेर हो गए। It was Manish Kumar, the right corner of Veer Bahadur Singh University, who did that tackle, and this is Vineet Nain, the right cover into the raiding duties. And look at his footwork, Sanjay, does not look like a defender's footwork. So again, we are emphasizing on the fact that at this level, at the Khelo India level, you will see more all-rounders than the specialist players. बिल्कुल यहीं से धीरे धीरे इसी प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ते हुए ये तमाम खिलाड़ी विशेषज्ञता हासिल करते हैं। कोई एक अच्छा रेडर निकल जाता है, कोई डिफेंडर, कोई कॉर्नर, कोई कवर, सबकी अपनी अपनी पोजीशन, अपनी अपनी मजबूती होती है। और इस समय एक बार फिर रेड पर हैं अभिषेक की रेड। अभिषेक गए लॉबी में। जब लॉबी में गए तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ही
बाहर कर दिया था, टच किया था मनीष कुमार को। 1 point MD University. There's umpire Sundaraj signaling 1 point in the favor of MDU Rohtak. This is Lalit Chaudhary raiding for perhaps 4th time in this half. He was out on the first raid. Goes for that running hand touch on the left cover. Looks successful. Yes, he will get a point. अच्छा पॉइंट, बहुत ही महीन, बहुत ही आसानी के साथ 1 point 18-10, Purvanchal University. यानी कि अब 19-10 9 पॉइंट्स की लीड हो गई है। Immediately call back. 5 Down. का Call back. डिफेंस है सिर्फ, यहां पर बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पास मौका है कि आप शिकार करके लौट सकें। नितिन छिल्लर इस समय लेफ्ट कॉर्नर के सामने ज्यादा चहलकदमी करते हुए शायद ये एम्प्टी रेड करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें पॉइंट्स के लिए जाएंगे। समय उन्होंने निकाल दिया, आवाज आने लगी, यानी कि वक्त समाप्त हुआ। We're watching the first of the 4 games of Kabaddi at the Khelo India University Games. This is the last day of the pool stage matches. This is Pool A, where Veer Bahadur Singh Purvanchal University Jaunpur is facing the powerhouse MDU Rohtak. But unfortunately for both the teams, they have lost their previous 2 matches. So this is a match to finish at number 3 in the Pool A. None of the teams can go to the semis, which will happen tomorrow. बिल्कुल, सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे और फाइनल परसों होगा। ये दोनों टीमें इससे पहले अपने खेले गए दोनों मुकाबले हार के यहां आई हैं। जाहिर है सेमीफाइनल गेम की गुंजाइश खत्म हो गई है, लेकिन एक जीत के साथ, एक सम्मान के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 को अलविदा कहने के लिए ये दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतना चाहेंगी। 19-10 बड़ा फासला वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के फेवर में। And this is Lalit Chaudhary in red, one of the brightest stars of the Khelo India University Games, and this is called a commentator's curse yet again. बहुत ही बढ़िया पकड़ बनाई थी एंकल पर और कम से कम 3-4 जर्क मारे ललित ने, लेकिन पकड़ इतनी तगड़ी थी हाथों के बीचों बीच कि कोई मौका नहीं मिला और उसके बाद सपोर्ट भी डिफेंस का बहुत सही समय पर आ गया। विजय सबसे कामयाब रेडर, लेकिन डैश आउट। क्या डिफेंडर भी बाहर निकल गए? देखना होगा। बिल्कुल, डिफेंडर भी बाहर निकले, विजय तो बाहर निकले ही निकले। लॉबी से अगर आपका कनेक्ट टूट जाता है तो आपको बाहर बैठना पड़ता है। And it was a do or die raid. Still beats me why the 2 defenders were trying to dash him. So, 1 defender is also out, and this is Abhishek now in the raiding duties for the VBS Purvanchal. 2.5 मिनट का खेल बाकी है। पहले हाफ में डैश किया, काफी अग्रेसिव, काफी आगे जाकर के डैश करने की कोशिश थी यहां पर और कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि जाते जाते हाथ मिड लाइन को क्रॉस कर गया और यहां बाहर निकलना पड़ा डिफेंस के खिलाड़ी अंकित को। The officials are still in a conversation. When the mid line was crossed, number A, was any part of the raider's body in touch with the lobby? Yes, now they say yes. The defender will have to go out. The raider is safe. The decision stands. अगली रेड इस समय रेड पर है नितिन छिल्लर। 5 का डिफेंस, बैक किक लगाने की कोशिश लेफ्ट कॉर्नर पर, थाइस पर गए, बहुत एडवांस, लेकिन प्रशंसा यहां पर करनी होगी डिफेंस की। थोड़ा सा रफ टैकलिंग हुई है, लेकिन ऐसा हो जाता है कई बार कबड्डी में, और जब तक वो इंटेंशनल ना हो तो उसे नोटिस भी नहीं किया जाता। बढ़िया पकड़, अच्छा सपोर्ट पूरे डिफेंस का। Absolutely, the point goes to Vineet Nain, who initiated the tackle, the right cover of VBS. And the defense of this team is a highlight so far. Whenever they go for defense, they do not go for solo tackle. They always go in a jhund. They go for combination tackles. And this is one of the biggest reasons that they are leading by 10 points. Last 1 minute of the first half. 2 रेड कम से कम हम अभी और देखेंगे और इस समय रेड की जिम्मेदारी अभिषेक की है। अभिषेक इस समय रेड कर रहे हैं। अभिषेक को डैश करना चाहते थे, डैश करने में कामयाब हुए और सबसे बड़ी बात कि अपने पैरों को लॉबी में जमा करके रखा डिफेंडर ने, अन्यथा उन्हें भी बाहर निकलना पड़ता। अभिषेक काफी
बाहर निकल चुके थे, इसलिए उनकी वापसी की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। क्या इसके बाद हम एक और रेड देख सकते हैं? फिलहाल इस समय गोविंद बनवर जा रहे हैं रेड पर। 3 का डिफेंस यानी कि सुपर टैकल की सिचुएशन इस समय बनी हुई है। अगर रेडर को पकड़ा गया, बिल्कुल नहीं, बहुत ही एडवांस टैकल करने के लिए गए थे। और अच्छी बात ये कि बाकी डिफेंडर्स नीरज के साथ नहीं आए, नहीं तो शायद कम से कम 1 या 2 लोगों को और जाना पड़ता। ऑल आउट की दहलीज पर है टीम। और इसके साथ ये हूटर की आवाज ये बताने के लिए कि हाफ टाइम का वक्त यहां पर हो चुका है। और हाफ टाइम तक की जो कहानी है वो ये कि वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी जौनपुर फिलहाल 25-12 से आगे चल रही है। और बढ़िया प्रदर्शन जौनपुर का, और ये पहली जीत जिसकी उन्हें तलाश है, इस समय हम उनका इंतजार कर रहे हैं। और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक 12, वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी जौनपुर 25। ये ब्रेक टाइम है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 कबड्डी का आज का पहला मुकाबला। लीग मुकाबलों का आज आखिरी दिन है। कल से सेमीफाइनल खेले जाएंगे और उसके बाद फाइनल मुकाबला होगा 3 तारीख को, जो कि किनके बीच होगा उसके लिए हमें कल तक का इंतजार करना होगा। बहरहाल जो सेमीफाइनल की संभावनाएं हैं वो हम तलाश चुके हैं कि सेमीफाइनल में कौन कौन पहुंच रहा है। कोटा और बंसीलाल यूनिवर्सिटी, ये दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। दोनों ने अब तक खेले गए दोनों मैचेस जीते हैं, जबकि दूसरी तरफ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। और इस मुकाबले की जो हाइलाइट्स हैं उन पर हल्की नजर दौड़ा लीजिए। बहुत ही बढ़िया थाई होल्ड के लिए गए थे यहां पर, और इस थाई होल्ड से लगातार उन्होंने अपनी मजबूती को बनाने की कोशिश की। खासतौर से डिफेंस कई मौकों पर बेहतर प्रदर्शन करता दिखा है। रेडर्स में इस बार अब तक कोई खास कुछ देखने को नहीं मिला, यानी कि कोई खास चुनौती रेडर्स की तरफ से अब तक नहीं मिली है। तो ये हैं हाइलाइट्स इस मुकाबले के। और 25-12 ये है स्कोर लाइन। अब देखना है कि इस स्कोर लाइन को क्या दूसरे हाफ में पलट सकती है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक की टीम, जो कि इससे पहले अपने दोनों मैचेस हार चुकी है। कई बार जब रेडर जाते हैं डिफेंस के लिए तो कुछ मौकों पर उन्हें परेशानियां भी होती हैं और उनके जो असली जो संभावनाएं होती हैं वो निरस्त कर दी जाती हैं। तो ये हैं इस मुकाबले के हाइलाइट्स। और अभी इंतजार है ब्रेक का। 25-12 यानी कि 2 गुने से ज्यादा का फासला, एक बड़ा फासला हो गया है यहां पर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के फेवर में। क्या वो इस फासले को बना करके रख पाएंगे, ये देखना होगा। मौजूद हैं 2014 एशियन गेम्स में कबड्डी के गोल्ड मेडलिस्ट और जिनको हम प्यार से फ्लाइंग नरवाल कहते हैं, सुरजीत नरवाल। सुरजीत भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। थैंक यू सर, थैंक यू। एशियन गेम्स से लेकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, पिछले 7-8 साल में जिस तरह से भारत में कबड्डी को बढ़ावा मिला है, सुरजीत कितने इंप्रेस हुए हैं आप इन खिलाड़ियों के स्किल देखकर? देखिए, जब से कबड्डी मैट पे आई है और 2014 के एशियन गेम के गोल्ड के बाद कबड्डी जब तक गोल्ड जीता था, जब तक कैमरे पे कबड्डी स्टार्ट हो गया आने, दुनिया जानने लगी कि भाई ये प्लेयर फलाने स्टेट से है, ये फलाना खिलाड़ी इसकी यूनिवर्सिटी से खेलता है। जब से काफ़ी ऊपर है कबड्डी का नाम। क्रिकेट के बाद अगर जाना जाता है तो कबड्डी को जाना जाता है। हम फील्ड में जाते हैं तो कहीं भी कहते हैं कि ये इंटरनेशनल प्लेयर है, ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेला है, ये खेलो इंडिया खेला है, सभी प्लेयरों को नाम से जानते हैं। और जब आप कबड्डी खेलते थे तो यूनिवर्सिटी के गेम्स हुआ करते थे, वो एक अलग बात है, लेकिन अब यूनिवर्सिटी गेम्स टीवी पे भी आ रहे हैं। इन दोनों टीम में एमडीयू और पूर्वांचल, कुछ एक खिलाड़ियों ने आपको भी इंप्रेस किया होगा? काफ़ी सारे अच्छे खिलाड़ी हैं, यंग खिलाड़ी हैं। और जब मैंने इंटर यूनिवर्सिटी और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला था, जब हम मिट्टी में खेलते थे, लेकिन इतना पॉपुलर गेम नहीं था। लेकिन अगर आज देखा जाए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी हो रही है तो काफ़ी अच्छे खिलाड़ी आए हैं उभर के, और जो कि अपने यूनिवर्सिटियों का नाम रोशन कर रहे हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत, आपने भारत का नाम रोशन किया था एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर। ये खिलाड़ी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर रहे हैं और आशा करते हैं इसके बाद इनको लीग में और भारत के लिए खेलने का भी मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वापस चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। सुरजीत नरवाल एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट इस समय सुनील तनेजा के साथ बातचीत में थे और अब ब्रेक के बाद यानी कि दूसरे हाफ का मुकाबला शुरू हो रहा है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी इस समय लीड पर 25-12 से। क्या इस दूसरे हाफ में वो अपनी इस कहानी को तब्दील कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बड़ी लीड है उनके पास, 2 गुने से ज्यादा की लीड है। इस लीड को अगर सुरक्षित रखते हैं तो कम से कम एक जीत के साथ खेलो इंडिया में कबड्डी के इवेंट्स को वो समाप्त करेंगे। Absolutely. First of all, the most important thing is participation, and then winning. And when you leave the tournament on a winning note, that gives you a lot of confidence for the next edition. Okay, the first raid of the second half, and the raider is Vikas Chiller, the last man standing for the MDU Rohtak. Goes for a bonus, will get it, but that does not get you a revival. Defense very patiently waiting. This is very unlike now they have lost the patience, but they have gotten all out as well. Vineet in the right cover in the defensive duties. The second all out given by the VBS Purvanchal to MDU Rohtak Sanjay. तो अब वापसी की संभावनाएं लगातार कमजोर सी होती जा रही हैं। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक लगातार ट्रेल कर रही है और ये तीसरा जो मैच है उसमें जो लीड उन्होंने ले ली है उस लीड से उबर पाना आसान कतई नहीं होगा। सब्स्टिट्यूट किया गया है, नीरज बाहर गए हैं और नीरज की जगह पर इस समय नंबर 3 की जर्सी पहने रविंदर मलिक को अंदर भेजा गया है सब्स्टिट्यूट के तौर पर। और यहां आयुष रेड पर लेफ्ट कॉर्नर से, लेफ्ट से रेड कर रहे हैं आयुष। कंप्लीट डिफेंस 7 का। आयुष अंदर बहुत कम दाखिल होते हैं, उनका जो स्टाइल है वो बहुत आसान सा स्टाइल है, दूर रहते हैं, अंदर जाते नहीं हैं। और यहां पर विक्रांत यूनिवर्सिटी डिफेंस में मौजूद थे, विशाल, उनके पैर एंड लाइन के नीचे पीछे निकल गए। This is Nitin Chiller raiding for the MDU. Tries for a bonus. Will not get it. The referee says the other foot was not in the air. Ayush raiding back to back. Raiding from the left. Goes for that running hand touch on the left corner. Does not get it. Starts once again. Will he go for a running hand touch on the cover? No. So 2 empty raids by Ayush. That means the next raid from the Purvanchal University is going to be a do or die. विजय, आयुष की ज्यादातर रेड्स एम्प्टी रेड्स हैं। वो रेड्स करते जरूर हैं लेकिन अंदर दाखिल नहीं होते। यहाँ विजय एक बोनस की रनिंग बोनस का ट्राई जरूर किया था बोनस लेकिन उन्हें मिला नहीं और वापस लौटे। आयुष एक बार फिर रेड पर, लगातार रेड कर रहे हैं आयुष और 3 मिनट का वक्त निकल चुका है दूसरे हाफ में। लीड अब अच्छी खासी बढ़ती जा रही है, 17 पॉइंट्स की लीड बहुत मुश्किल है अब महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के लिए। यहां पर टच किया, बढ़िया टो टच, थोड़ा सा शफलिंग की अपने फुटवर्क के साथ और खूबसूरत टो टच किया आयुष ने। Viraj Malik the victim. So as expected, this is a do or die raid for the MDU Rohtak. This is Nitin Chiller. Will the defense be patient? Okay, 2 points for sure. This could be a super raid. If he has taken a clean bonus, this could be a super duper as well. 1 touch, 2 touch, 3 touches for sure. Yes, it is a super raid, Sanjay. 3 points super from raid University. during a do or die is definitely
something that we don't see very often. बिल्कुल डू और डाई में अगर आप सुपर रेड लगा दें तो और क्या चाहिए। और यहाँ आयुष ने लगातार दूसरी रेड में वो पॉइंट लेकर के आए हैं। इससे पहले उन्होंने टो टच किया और यहाँ पर उन्होंने शिकार किया नितिन छिल्लर का। Lead still in the double figures. 15-31 in favor of VBS Jaunpur. And I had the honor of speaking to the former Indian international Surjit Narwal. In fact, we have seen 3 Surjit Narwals play for India. This was the first one to play the 2014 Asian Games. There was another Surjit Narwal who was in the squad, who was a left raider. And then it was Surjit Singh Narwal, the right cover, who was a part of Dubai Masters and the previous World Cup. All come from Sonipat. This is a good dive on a single thigh by Vishal. विशाल का बढ़िया डाइव आयुष पर। आयुष लगातार रेड्स कर रहे थे। अब देखना है कि रेड्स के लिए अगली बार कौन आता है, लेकिन यहां विजय जा रहे हैं। 15 मिनट का वक्त बाकी है, 2 गुने का फासला है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को संभवतः अपनी जीत की थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लगी होगी। ब्लॉक करने का प्रयास था, लेकिन चूंकि मोमेंटम बहुत तगड़ा था रेडर का, विजय का, उन्होंने अपने साथ तकरीबन वो घसीट कर ले गए अजय राठी को और कामयाब हो गए विजय के साथ। Ajay Rathi and Govind Pawar, 2 victims. So 2 points signaled by the umpire, and this is Lalit Chaudhary raiding after, say, 2 centuries. This is probably 5th or 6th raid from Lalit Chaudhary today, Sanjay. बहुत कम रेड्स किए हैं आज उन्होंने। आयुष का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आयुष एम्प्टी रेड्स के मास्टर हैं। बहुत कम रेड्स में वो पॉइंट लेकर के आते हैं। और ललित चौधरी का जहां तक सवाल, लगातार हमने उन्हें बेहतर खेलते देखा। यहां पर विजय आए हैं टीम को ऑल आउट करने, और विजय ये काम कर सकते हैं, फासले को घटा सकते हैं। Well, a super tackle is on. Goes for an advanced tackle, Lalit Chaudhary, and this is a great super tackle. How good is that? बहुत ही जबरदस्त सुपर टैकल यहां पर किया और विजय को बाहर जाना पड़ा। ललित चौधरी, जैसा कि हमने आपको बताया, न सिर्फ बेहतर रेडर है बल्कि डिफेंडर भी शानदार है। सुपर टैकल मतलब एक नहीं, एक की जगह आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं, तो 2 पॉइंट्स मिले, एक रिवाइवल मिला, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। एक शिकार कीजिए और 2 पॉइंट्स लीजिए। तो ललित अब जा रहे हैं रेड पर अगली। He got a bonus during his previous raid, then did a super tackle. So he's got 3 points to his name. Make that 4. He is unstoppable, Lalit Chaudhary. 2 points in 2 raids and a couple of points for the super tackle. And his team, which was on the verge of all out, Sanjay, is now breathing much easier. 4 men in the court. The score still in their favor, leading by 17 points. 13 मिनट का वक्त बाकी पहले हाफ में। नितिन छिल्लर 4 के डिफेंस में, 1 टच किया, 2 टच किया, क्या तीसरा भी टच हुआ। नंबर 12 फर्स्ट आउट, नंबर 12 फर्स्ट आउट। 2 पॉइंट्स यहां पर मिले। अपनी पेस से उन्होंने बीट किया, जैसे ही उन्हें लगा कि गिरफ्त बनने वाली है, झटका देकर निकले और जाते जाते एक और शिकार कर गए। तीसरे की भी कोशिश में थे, लेकिन संभवतः स्पर्श नहीं हुआ। Again, back to 2 men now, VBS. Again, it is on Lalit Chaudhary. It is his duty to avoid that all out. Bonus given. Definitely bonus given. Will he do that super tackle once again? Bonus signal, yes. The lead still 16 points. Even if they are all out, Sanjay, the lead will still remain in the double figures. No team wants to get all out. Super tackle situation. No super tackle this time. Lalit is the last man standing. The idea was not bad. It was just that the Raiders' thirst, his momentum of the body was towards the midline. This is the second half of the first match. The first of the 4 matches to be played in Kabaddi at the Khelo India University Games. The VBS taking on MDU.
their last matches at the Khelo India University Games, and the first all-out given by MDU. No, this is not an all-out because a defender is a self-out also. 1 or 2. That means at least a revival, one revival for the VBS University, Sanjay. 11 मिनट का वक्त अभी भी बाकी इस मुकाबले में। 36-22 अच्छी खासी लीड है 14 पॉइंट्स की। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी वर्सेस महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, और इसके साथ ही ऑल आउट वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी, इसके साथ ही ऑल आउट 3 पॉइंट्स एमडी यूनिवर्सिटी एक और ऑल आउट लेने में कामयाब हुई। 38-22 स्कोर लाइन अभी ठीक होगी। 38-25 बेहतरीन मुकाबला। थोड़ी सी वापसी की कोशिश जरूर दिखाई दे रही है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक की, लेकिन लंबा सफर है। यहां ग्रीन कार्ड जर्सी नंबर 6 को दिया गया है, जो कि नितिन छिल्लर हैं। संभवतः अनुशासन की कमी की वजह से आयुष एक बार फिर गए हैं रेड पर। आयुष ने ज्यादातर रेड्स की आज सुनी। Absolutely. Lalit Chaudhary is definitely their superstar. And if my memory serves right, he has got a high five in defense. I've not seen him raid much, but whenever he came to raiding, hardly went back empty-handed. And thanks to this all-round performance, his team, VBS, despite getting an all-out, is leading by 13 points. Because in the first half, VBS gave MDU all-out twice. विशाल, टो टच अच्छे होते हैं इनके, लेकिन यहां पर सिर्फ अपने कदमों का मूवमेंट दिखाते हुए वापस लौट गए, कुछ खास कर नहीं पाए। और अब रेड पर जा रहे हैं ललित चौधरी। ललित चौधरी टीम के सबसे बेहतरीन रेडर, और ब्लॉक करने की कोशिश, बहुत एडवांस ब्लॉक करने का प्रयास था। आप इतना एडवांस जाकर के कैसे किसी रेडर को ब्लॉक कर सकते हैं, वो भी तब जबकि वो पूरी तरह से मोमेंटम में हो। रविंदर मलिक को बाहर जाना पड़ेगा इस ब्लॉक की नाकाम कोशिश में। And this is the man who saw the green card earlier on. Nitin Chiller takes a point. 1 point MD University. We have hardly seen 2 or 3 do-or-die raids in this match so far. This is such a high-paced match. MDU was trailing very badly in the first half. They're trailing badly now as well, but second half for them has been a little better. While they gave an all-out to the VBS Purvanchal University. This is a Pool A match, the second last match of the Pool A match. Both these teams are out of the semi-final contention, while the other two teams, the University of Kota and Chaudhary Bansilal University Bhiwani. This is a good escape. 2 points or 3. 2 points for sure. Could be a super raid. 2 पॉइंट्स लेकर के गए हैं। आयुष को जैसे ही लगा कि बिल्कुल उनके नजदीक आ रहे डिफेंडर, उन्होंने बैकथर्स्ट किया मिड लाइन की तरफ और कामयाब हो गए। एक बार फिर बाहर कर दिया रविंदर मलिक को। रविंदर मलिक सब्स्टिट्यूट के तौर पर खेलने आए हैं और लगातार 2 बार अभी उन्हें डिफेंस में बाहर होना पड़ा है। ये शानदार टैकल है, डबल थाइस पर गए थे और कामयाबी के साथ विनीत नैन ने इस डिफेंस के इस मूव को सफल बनाया। बेहतरीन मूव, और अब स्कोर लगातार बढ़ता हुआ 42-26, पहुंच से बाहर होता हुआ मुकाबला महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के लिए। Cannot believe that a university from Rohtak has lost 2 matches and is about to lose the 3rd one as well. The Rohtak being one of the epicenters of Kabaddi, and especially the MDU Rohtak. They can say that the cream of their players is attending the national camp in Delhi. Khelo India University Games, last day of the pool stage matches. Advanced tackle attempted by the right cover, the informed Vineet Nain. मुझे लगता है कि थोड़ा सा वार्निंग देने के भी मूड में थे, लेकिन निकल गए। जिस तरह से उन्होंने हाथ बढ़ाया था, अचानक एक लगा था जैसे वो स्लैप लगा रहे हों, तो इस तरह की अनुमति नहीं होती है। कबड्डी में आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना पड़ता है। लॉबी में गए आयुष। लॉबी में जाने से पहले उन्होंने एक बार फिर शिकार किया रविंदर मलिक का। रविंदर मलिक लगातार बाहर जा रहे हैं और बढ़िया प्रदर्शन आयुष का। Lead rated today, Ayush. In the previous 2 matches, it was Lalit Chaudhary, but today it is Ayush who is their lead raider, and he is impressive. 8-11 out, 8-11 out, 5-7 in. Couple of changes done by the coach of Veer Bahadur Singh University, Jaunpur, and why not?
You're leading by a handsome margin. The last match of the Khelo India University Games for you. Definitely want to try all the players on the bench. 8-11 out, 5-7 in. 5-7 in. That means Anil Tyagi and Vikrant are getting some mat time. Close to 6 minutes remaining. Lalit Chaudhary is still on the mat. He is wearing a jersey number 3, standing at the left cover position right now. While the raider, Vijay, appeals for a bonus, does not get it. लगातार रेड्स पर हैं आयुष आज। संभवतः जानबूझ करके टीम प्रबंधन का ये फैसला हो कि आज आयुष से ज्यादा रेड्स कराई जाएं, क्योंकि वैसे भी मुकाबला उनकी गिरफ्त में दिखाई दे रहा है। यहां पर दावा कर रहे हैं कि उन्होंने टच किया है। अब देखना यह है कि बिल्कुल टच हुआ है। पहले मान नहीं रहे थे डिफेंडर, लेकिन बाद में जब विसल बजी तो मानना पड़ा और बाहर निकल गए विकास छिल्लर। This is Vishal. Down to 3 men now. MDU Rohtak. Last 5 minutes of the game. Oh, this could be a super 8. This could be a super 8. 2 points for sure. Look at that. 2 players went for that thigh hold, and then came the substitute Vikrant. This is a super 8. Third super 8 for the Maharishi Dayananda University Rohtak. बिल्कुल बोनस का भी प्रयास था उनका, और वो बोनस थोड़ा सा चूक गए। 2 बार अटेम्प्ट किया था उन्होंने बोनस का, अन्यथा 4 पॉइंट्स होते। तो बढ़िया रेड, फासला और बढ़ाती हुई। और अब 4 मिनट का वक्त बाकी इस मुकाबले में। तो 4 मिनट के इस मुकाबले में कोई बहुत ज्यादा संभावनाएं अब दिख नहीं रही हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की। The only silver lining for them, Sanjay, has been the super raids. They have been trailing throughout the match, but 3 out of the 4 super raids of the match have come for MDU Rohtak. And this dubki as well. Some serious skills shown by these youngsters. This was Nitin Chillar. तो नितिन छिल्लर ने एक शानदार डुबकी लगाई, बिल्कुल जिसे आप कॉपी बुक स्टाइल में कहते हैं। चेन लेकर के सामने 2 डिफेंडर थे, पहले से अपना सर झुकाया, नीचे से निकल गए, बहुत ही खूबसूरती के साथ 2 पॉइंट और लेकर के चले आए। अब रेड पर गए हैं इस समय अनिल त्यागी। अनिल त्यागी सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए हैं। संभवतः पहली रेड है और उसमें कामयाब नहीं होंगे। मौका था अनिल त्यागी के पास अपने पैरों से प्रयास करने का, लेकिन विशाल ने जिस तरह से पूरी ताकत के साथ उनको जकड़ा, कोई मौका नहीं मिला। All out number 2 given by the MDU. The game is not over yet. Remember, they were trailing by 15 plus points just a few minutes back. And now the score difference is in single digits, Sanjay. Never say never in Kabaddi. 8 पॉइंट का फासला। थोड़ी सी वापसी की कोशिशें यहां पर दिखाई दी हैं, लेकिन वक्त अब ज्यादा नहीं है। क्या उन कोशिशों को किसी परिणाम में तब्दील कर सकेंगे? यहां देखिए, सिर्फ समय काटने की कोशिश है। 30 सेकंड की जो रेड है उसका भरपूर समय लिया जा सके, लेकिन काफी अंदर चले गए थे और डिफेंडर्स को मौका मिल गया। विराज मलिक ने उनका शिकार किया। Viraj Malik in chain with his partner Ravinder Malik. The score difference now 7. Can they get one more super raid? Tries for that bonus. Does not get it. This was Nitin Chillar. Okay, another aggressive tackle. Hang on. They're waiting for something. This was a pursuit attempted. Well, the defense. One technical point, MD University. Technical point given to the MDU. They will not mind it. The points is all they need. आयुष है इस समय रेड पर और पूरे 30 सेकंड लेने की कोशिश करेंगे। बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं है आयुष को। अभी भी बिल्कुल वो किनारे खड़े थे और उन्होंने अटेम्प्ट किया पूरी तरह से। अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाए विराज मलिक। झपट्टा मारने की कोशिश की, लेकिन काफी आगे निकल चुके थे आयुष। Score difference of 7 points. 2 raids each
as we are predicting in the last 2 minutes. Both the teams can get a minimum of 2 raids. And this is a technical timeout, in fact, taken by the match referee Murli Kumar. They are talking to the coach of the VBS University, who has been shown a green card. Doing the right, disturbing the match. Coaching during the raid. So it's a high pressure game, Sanjay. कोच कैसे अपना मुंह बंद करके बैठ सकता है इस तरह के मुकाबलों में जहां फासला लगातार कम हो रहा है। और यहां बैक किक लगाने की कोशिश की थी 7 के डिफेंस में, और ये ब्लॉक करने का प्रयास, कमजोर प्रयास था, कोई जरूरत नहीं थी इसकी। इस तरह से अगर आप पॉइंट्स कमाएंगे तो जीती हुई बाजी हाथ से निकल जाएगी। नितिन छिल्लर कामयाब। The only good thing that is happening to the VBS Purvanchal is that they are losing point in single. They're only giving 1 point, not losing multi-points. Advanced tackle attempted. Oh, look at that. Some guts shown by the defender. That was a very, very, very risky tackle. And there came the support and they got an important point. बहुत ही बढ़िया डिफेंस यहां पर, अच्छा प्रयास। पिछली बार अगर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी ने इस बार अच्छा डिफेंस किया है, लेकिन अब सिर्फ 5 पॉइंट्स का फासला है। वक्त 1 मिनट का है, किस तरह से काटेंगे? अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन देखिए जो बॉक लाइन है उसको किस तरह से गार्ड किया हुआ है। बॉक लाइन से अंदर जाने की इजाजत नहीं है, और अगर आपने बॉक लाइन क्रॉस नहीं की तो आप आउट हो जाएंगे। मुझे लगता है कि उसके बाद भी उन्हें बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करने चाहिए, और ये तो रेसलिंग हो रही है। The MDU desperately needed a point. They have got a point. They will get 1 raid. This could be the last raid of the match, but this is surely last raid for the MDU. Stop. All they need is 5 points for a tie, and 5 points would mean an all-out as well. And that would mean a victory for them, which looks very unlikely. Why is not a single defender going and sacrificing him? No need for that. No need for the sacrifice. They will win in the best fashion. Single thigh hold, the raider goes to the bench. And we may see another raid. May see a raid. Yes, 1 second remaining. And with that formality of crossing the balk line, the Veer Bahadur Singh Purvanchal University has registered their first victory in their last match of the Khelo India University Games Season 2. They were beaten earlier by the Kota University and the Bhiwani University, but in their last match they have beaten the MDU Rohtak 47-41, and they will finish at number 3 in the Pool A. But a very, very drastic campaign for the MDU Rohtak, Sanjay. 47-41 वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी जौनपुर ने इस मुकाबले को जीता। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक को पराजित किया। इकलौती जीत जौनपुर की, और इस जीत के साथ कम से कम वो खाली हाथ नहीं लौटे हैं। पहला मुकाबला जीता है, सेमीफाइनल में तो नहीं पहुंच सके हैं, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि तीसरे स्थान पर रहे हैं 4 टीमों के इस पूल में। तो ये कहानी है। वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी जौनपुर ने आज के पहले मुकाबले में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक को 47-41 से पराजित कर दिया है। Let's have a look at some of the highlights. The second half was really interesting. It was not a one-way traffic in the second half. The second half started with an all-out given by VBS to MDU. But after that all-out, the MDU Rohtak came back really well. All thanks to more than a couple of super raids. And then a very, very smart defense. And also some tactical surprise by the VBS University. That why didn't they use their superstar Lalit Chaudhary in raids as much as their fans would have expected. And 2 all-outs given by the MDU Rohtak to the VBS Purvanchal. That made this match really, really interesting. And especially after the second all-out, Sanjay.
47-41 और यहाँ पर एंकल होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन बेहतर प्रदर्शन और लॉबी के बाहर किया। लॉबी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिला है। 7 का डिफेंस है और ये देखिए किस तरह से टैकल करने की कोशिश की थी। थोड़ा सा साइड ऑन था डिफेंडर और इसलिए फिसलते हुए निकल गए मिड लाइन की तरफ। तो बढ़िया मुकाबला देखने को मिला। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक ने जिस तरह की वापसी की वो काबिल तारीफ थी। अगर थोड़ा सा पहले प्रयास शुरू हुआ होता तो फिर बात कुछ और होती। 47-41 क्या बोल रहे हो? क्या बताए लोगों का क्या चलता है। सुबह से कितने मैच हुए सर? पहला था ये पहला तो अब मैं बोला सर को, सर मेरा यहाँ खत्म हो गया, मैं जा सकती थी कबड्डी में। हाँ। तो नहीं, इधर आर्चरी कंटिन्यू करो, कल करो। तो फिर ठीक इतना कंफर्मली बता रहे तो मैं क्या करूँ? इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कबड्डी जब से शुरू हो गया साइड में स्वागत आप सभी का पूल ए में। अगला मुकाबला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में कबड्डी का जैन यूनिवर्सिटी ग्लोबल कॉम्प्लेक्स बेंगलुरु से हम मौजूद हैं। इस मुकाबले का आंखों देखा हाल लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और वर्सेस गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर जतिन, रिंकू, नवीन, राम नारायण, रवि तेहलान, जतिन फोगाट, यश हुडा, मोहित, विजय नरवाल, अमित कुमार, नरेंद्र और रजनेश नरवाल। एक सॉलिड टीम दिखाई दे रही है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। वैसे भी सेमीफाइनल में ये पहुंच चुके हैं। और दूसरी टीम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। Definitely a very decent team. Arpit Saroha is one of their main players. So is Akash ne, and also keep an eye on Prashant Rathi, Kishan Yadav, Ravi Verma, Raj Yadav, Rohit Singh, Sandeep Singh, Gautam Tomar, Dhananjay, Azad Singh and Ajit Yadav. This group is really interesting because Guru Nanak Dev University have won 2 matches. Their opponents, Mahatma Gandhi Kashi University, have won 1 match. By chance, Sanjay, if Kashi beats GNDU, both the teams would have won 2 matches. And the last match of this pool will be played between LPU and CV Raman. If CV Raman beats LPU, they would have also won 2 matches. So we will have 3 teams with 2 victories each, and then it will be on the officials, the criteria for the semi-final, that rate points scored minus the rate points conceded or the score difference and everything. So GNDU, even after winning 2 matches, cannot be 100% sure of making it to the semi-finals. If they win today, even if they play a tie, then they are definitely through. A victory for the Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth and a victory later on for the Dr. C.V. Raman University will make this group very, very interesting. So plenty to look forward to in this match and the last match of this pool as well. आज का ये दूसरा मुकाबला महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वर्सेस गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021।
गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने इससे पहले तो बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के लिए भी। अगर वो जीत जाते हैं तब तो फिर पूरी तरह से सेमीफाइनल में है, फिर कोई शंका की शक की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पास मौका है कि वो इस मुकाबले को जीतकर अपनी जो स्थिति है उसे थोड़ा सा बेहतर बनाएं, मजबूत बनाएं। काशी विद्यापीठ इससे पहले एक मुकाबला जीती है, एक में उसे शिकस्त झेलनी पड़ी है। So still waiting for the official's signal for the start of this match. While on the other court, on the court number 2 in the women category, one of the tournament favorites, Kurukshetra University is taking on Mangalore University, Karnataka. And the university from Kurukshetra is leading 25-11. A decent crowd today as well. Hardly any empty chair. Even the VIP stand is full, which is on the left side of the commentary table. We have plenty of big names in the Indian Kabaddi watching the Khelo India University Games Kabaddi matches live. We have Surjit Narwal with us, who is the Asian Games gold medalist and the Deputy Director Haryana. And we also have Mr. J. Uday Kumar, P. Ganeshan Saab, former Arjun Awardee international player, is also here. So is Mr. Jaivir Sharma, a very famous reputed coach. So plenty of big names in Kabaddi are in attendance today. Total match 5 substitutions. Timeout is allowed. Anytime you want Officials to having a word come and stand. with the Okay. Yeah. team Inform. coach Anytime inform and come and stand. while the players line up for the formal introduction. The first 7 have been noted by the official bench. And we are just moments away from start of the game number 2 in Kabaddi. But the captain. Potruma. Last Potrita. One pro. Come, captain. Toss time with the match referee Sundar Raj. Okay. Head and tail. As both the teams are now Okay. getting an Oh, introduction yeah, with live chal rahe Mr. na. P. Ganeshan, Miss Aarti Bari, who is the competition director, and Mr. J. Uday Kumar, the former national coach. For the university level players, Sanjay, Chief guest. meeting with the big names of Kabaddi here is not less than a huge achievement. बिल्कुल उनके लिए आपने ठीक कहा, ये उपलब्धि के समान है। जब आप बड़े नामों को देखते हैं तो आप उनसे प्रेरित होते हैं, सीखने की ललक होती है, मन में ये उम्मीद होती है कि एक दिन हम भी शायद इनकी जगह पर अपना नाम अंकित करा सकें और लगातार आप फिर बेहतर करने की कोशिश करते हैं। कबड्डी में, कुश्ती में एक चीज बड़ी खास है, यहाँ प्लेयर्स हाथ कम मिलाते हैं, चरण स्पर्श ज्यादा करते हैं। तो भारतीय संस्कृति, भारतीय तहजीब का इससे बढ़िया प्रदर्शन शायद किसी और खेल में ना होता हो, और ये अच्छा लगता है देख करके। हो सकता है आप इसे कहें कि ये ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे ज्यादा होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने संस्कारों, अपने रीति रिवाजों को मानना, उनको पालना और उन पर गर्व करना, ये किसी भी पृष्ठभूमि के लिए जरूरी नहीं है, चाहे वो ग्रामीण पृष्ठभूमि हो या शहरी पृष्ठभूमि हो। कबड्डी, रेसलिंग जैसे खेलों में, मुक्केबाजी में ये चीजें हमने बहुत देखी हैं, जहां पर गुरु की अलग अहमियत है, अपने सीनियर, अपने वरिष्ठों की अलग अहमियत है, जो कि बाकी खेलों में शायद उतना दिखाई नहीं देता। सुनील, Absolutely. In sports like Kabaddi, Kushti, wrestling, boxing, the coach is considered as a guru. And in Indian culture, guru is considered equivalent to the Lord, to the God. Guru Param Brahma, we often listen to it. So the coach is a guru, is a God for the players. Then that is why they touch the feet of their coaches and the senior players
who are considered as their elder brothers and sisters. And we are so proud of this Indian culture. बिल्कुल, तो मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर वर्सेस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर का एक पैर सेमीफाइनल में है, लेकिन उस पैर को मजबूती से जमाने के लिए उन्हें यह मुकाबला जीतना होगा और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को अपनी संभावनाएं बनाने के लिए इस मुकाबले को जीतना होगा। यानी कि अहम मुकाबला दोनों नजरियों से अभी देखने को मिलेगा। इस समय कप्तान दोनों टीमों के टॉस के लिए और काशी विद्यापीठ के कप्तान मौजूद हैं नंबर 3 जर्सी यानी कि अर्पित सरोहा, और दूसरी टीम के कप्तान हैं रजनीश हैं। और अब इस मुकाबले की शुरुआत हो रही है। अंपायर सुंदर राज जो कि लगातार इन मुकाबलों को संचालित कर रहे हैं, तैयार हैं आज की इस पहली रेड के लिए दूसरे मुकाबले की। So the formalities of toss done. Mahatma Gandhi, Guru Nanak. GNDU on your left in red and white. Team get ready. While the Kashi Vidyapeeth, the Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth from Banaras, Uttar Pradesh on your right in blue and white. Akash Nain in first grade. Guru Nanak Dev University comes from Amritsar, Amritsar, Punjab. 1-2 out of 2. Still not confirmed for the semi-finals, as Sanjay told you, because the Kashi Vidyapeeth has won one match. Dr. C.V. Raman University has won one match. By chance, if both the teams win again, we will have 3 teams with 2 victories in the Pool B. And then the score difference will decide which 2 teams will make it to the semis. So Guru Nanak Dev University, very rightly told by Sanjay, has 1 foot in the semis. But to confirm it, they will have to win this match as well. Or if they lose, then they hope that LPU beats Dr. C.V. Raman University in the last match. बिल्कुल, आजाद सिंह रेड पर हैं। दोनों ही टीमों ने अभी अपने खाते की शुरुआत नहीं की है। और रामनारायण को हमने बराबर GNDU से रेड्स करते हुए देखा है। थोड़ा सा स्किल मांझने की जरूरत है रामनारायण को, अन्यथा इनके अंदर जो बॉडी का फोर्स है वो अच्छा खासा, जो स्पीड है वो बड़ी शानदार। ये देखिए, अचानक एक्सेलरेट किया और बढ़िया यहां पर टच किया, रनिंग हैंड टच मारा और बाहर कर दिया उन्होंने प्रशांत कुमार राठी को। First do or die of the game. So Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth has started the match on a slow pace. Goes for the running hand touch on the left corner, will get it. So the Kashi Vidyapeeth, they open their account with this speedy running hand touch. 2 tries, first on the left cover, then on the left in by Akash Nain. और बाहर किसको किया उन्होंने? जतिन फोगाट को, जो कि सबसे बेहतरीन रेडर हैं टीम के। बहुत ही बढ़िया टर्न एंड ट्विस्ट। जैसे ही देखा रिंकू ने कि बिल्कुल उनके नजदीक पहुंच चुके हैं राजकुमार यादव, उन्होंने टर्न किया, ट्विस्ट किया और कामयाबी यहां पर हासिल की। और ये टो टच की कोशिश थी, लेकिन ढेर हो गए। बढ़िया पकड़ बनाई वहां पर जतिन ने। Keep an eye on him. Jatin and Jatin Fogart. 2 Jatins in the team. One is a raider, one is an all-rounder. Here is the raider, Jatin. Jatin Fogart, jersey number 9. One of the stars of the Khelo India University games. Goes deep into the defense. Does a running hand touch on the right corner. And tells us why we have been singing praises for him. GNDU Amritsar leading 4-1. Sanjay Da was in Amritsar a couple of weeks back, a month back, I believe. How good were the Amritsari kulche, Sanjay Da? जबरदस्त। और कुलचे से ज्यादा मुझे वहां की लस्सी पसंद है,
स्पेशली जब उस पर मलाई मार करके ऊपर दी जाती है, उसका आनंद अलग है। तो वो लस्सी खूब पी, और कुलचों की तो बात ही अलग है अमृतसर की। दैट्स व्हाई वी से लस्सी जैसी कोई नहीं। बिल्कुल। और जतिन कुछ और कहना चाह रहे हैं? Jatin Fogart, definitely. And needless to say, if you're in Amritsar, you definitely go to the Harmandir Sahib. Oh, Jatin Fogart goes back to his court with 2 points. 3 in 2 for Jatin Fogart. One touch on the right corner, and then this wonderful escape using the lobby. रेफरी ने जब आउट दे दिया तो उसके बाद प्लेयर से ही अर्पित सिरोहा जो कि कप्तान है, वो गुजारिश करने लगे कि यार सही सही बताओ। गुरु यहाँ नानक पर देव ग्रीन नंबर कार्ड 9 दिया गया है उनके इस प्रयास के लिए 2 पॉइंट्स अर्पित को। गुरु नानक और देव अब सिर्फ 2 प्लेयर्स बचे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ नंबर में, 9। और ये एक थोड़ी सी खतरे की घंटी हो सकती है। इस समय आकाश नैन, पैर दिया आकाश नैन ने, और क्या बिल्कुल डिफेंस में खींच लिया। एक पल के लिए ऐसा लगा कि आकाश नैन संभवतः क्रॉस कर जाएंगे, क्रॉस तो नहीं किया। Cross nahi kiya, but what is the umpire number 2 looking at? They were discussing a bonus. So bonus given to Akash Nain and the tackle point given to the GNDU. They were checking whether the bonus was attempted first or the touch by the defender was there on the Raiders' foot. दरअसल वो जो शॉट है उनका वो पकड़ के खींचा गया था, और उनका उसी पर ऑब्जेक्शन था। बोनस तो दिया ही गया है, और 3 पॉइंट्स यहां पर और गुरु नानक देव। और इसके साथ ही ऑल आउट। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सिर्फ 1.5 मिनट के अंदर उन्हें डू और डाई के लिए जाना पड़ा, और 5 मिनट के अंदर वो ऑल आउट हो गए। That shows the class of the GNDU Amritsar. Akash Nain, the lone warrior for the team. And coming back to Amritsar, a visit to Harmandir Sahib is a must when you visit Amritsar. Take Vaheguru's blessings. उससे खूबसूरत जगह नहीं है, उससे ज्यादा शांति संभवतः और कहीं मिलती नहीं है, और बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत ही तरीके से दर्शन वहां पर होते हैं। शायद आस्था खुद ब खुद काफी बढ़ जाती वहां जब आप जाकर के दर्शनों के लिए लाइन में लगते हैं। अद्भुत जगह है, इसमें कोई शक नहीं। And when you go to Wagah border, तो देश के प्रति जो भावना है वो अपने आप बढ़ जाती है। Look at that turn, advanced tackle, unnecessary tackle. We'll come back to that Sanjay Das visit to Amritsar. It's a must visit place for every 1 point human. महात्मा गांधी। बिल्कुल, वाघा बॉर्डर में जब आप जाते हैं और भारत और पाकिस्तान की जो रक्षा बल हैं उनको एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं, तो थोड़ा सा रोमांच पैदा होता है, इसमें कोई शक नहीं। और अच्छी खासी भीड़ होती है, दोनों देशों के लोग वहां मौजूद होते हैं। और यहाँ 7 का डिफेंस, और 7 के डिफेंस में राम नारायण लगातार डिफेंस को हिलाने की कोशिश, और यहाँ एंकल के लिए जाना चाहते थे आधे अधूरे मन से। और जब आप ऐसी कोशिश करेंगे तो आपको अपना बलिदान करना पड़ेगा। राजकुमार यादव बाहर गए। Rajkumar Yadav, the left corner. Guru Nanak Dev University also boasts of having the. Okay, he is boasting for the 2 points. Will get 1 only. Talking about Maninder Singh, the Indian international player, the superstar raider from Punjab, was also a student of the Guru Nanak Dev University, Amritsar. I'm talking about perhaps a decade back. बिल्कुल, न जाने कितने अनमोल रत्न, कितने अनमोल सितारे उन्होंने देश को दिए हैं। यहाँ जहाँ हम बैठ करके इन मुकाबलों की कमेंट्री कर रहे हैं, जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी, यहाँ से भी न जाने कितने स्पोर्टिंग पर्सनालिटीज इस देश को, इस मुल्क को दी है। अद्भुत। और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो वो बेस है जहाँ से भारतीय खेल जगत में एक नई पौध, एक नई फसल विकसित होती है। और यहाँ पर क्या बढ़िया डाइव किया, बहुत ही बढ़िया वेस्ट पर गए। वहां मौजूद थे यश हुडा, और जो प्रयास था उसे बेकार किया, टैकल किया यहाँ शानदार तरीके से आकाश नैन को। Kudos to Ram Narayan as well, jersey number 7, who came in the front of the raider to make the tackle successful. Substitution Guru Nanak Dev, 9 out, 4 in. Making a substitute, 9 out, 4 in. Jatin Fogart, their star, has been substituted, and he is replaced by Vijay Narwal. So plenty of depth on the bench as well for the GNDU Amritsar. तो इस समय रेड पर
लगातार 2 प्रयास किए उन्होंने बोनस के लिए, लेकिन दोनों ही बार संभवतः बहुत आश्वस्त नहीं है कि बोनस होगा या नहीं होगा। Bonus point. बोनस आखिर उन्हें मिल गया। रिंकू जो कि जिन्होंने रेड की शुरुआत की थी, जतिन फोगाट टीम के सबसे बेहतरीन रेडर हैं, लेकिन उन्होंने शुरुआत आज रिंकू से करवाई थी। जतिन फोगाट का आज इस्तेमाल अपेक्षाकृत कम हो रहा है, संभवतः बहुत कुछ दांव पर नहीं है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के लिए। Absolutely. Perhaps they're trying to save him for the bigger matches. They are almost there in the semi-finals. If they win this match, they are 100% there. Even if they lose this match, still they have bright chances of making to the final 4. Ram Narayan was standing there. It's a risky tackle nonetheless. It's a risky tackle. Oh, how many points? This is going to be a super duper raid. Can we see all the 7 fingers in the air? गिनती शुरू हो चुकी है। राम नारायण ने कितनों का शिकार किया है, देखिए पूरी की पूरी टीम साफ हो गई है। एक गरीब अकेला खड़ा था और वही बाकी है, बाकी तो पूरी की पूरी टीम उन्होंने निपटा दी है। क्या जबरदस्त तरीके से, मैंने पहले भी कहा था कि उनके अंदर जो बॉडी फोर्स है वो जबरदस्त है। अपनी स्पीड और बॉडी फोर्स से वो विपक्ष को प्रेशर में लेकर के आते हैं। 5 points taken by Ram Narayan. And this is why we have been telling you that Ram Narayan reminds us of the great Maninder Singh. A little bit injured during that struggle, Ram Narayan, but he will not mind it. He has taken 5 touch points in 1 raid, Sanjay. This could have been an all-out raid, could have been a 6+2. Reminds us of that legendary raid by Pradeep Narwal. बिल्कुल राम नारायण की इस रेड को भी याद रखा जाएगा। और 10 मिनट का वक्त अभी बाकी है पहले हाफ में, और लीड देख लीजिए कहां चली गई है। 19-4 से आगे है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। तो क्या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वापसी की कोई कसर बचाएगी? क्योंकि अगर फासला बढ़ता जाएगा तो वापसी की संभावनाएं भी हाथ से छूटती जाएंगी। इस फासले को यहीं पर रोकना होगा, और इस समय आखिरी प्लेयर रेट पर यानी कि ऑल आउट का खतरा भी मंडरा रहा है। Will they show patience, the defenders, or will they wait for the raider to go back? Showing patience now, losing patience now, giving the second all out in 10 minutes, Sanjay. So 1 all out +2, 3 point, Guru Nanak Dev. 5 minutes. So the average is 5 minutes per all out so far. इस लिहाज से 8 बार ऑल आउट होना चाहिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को, लेकिन आई एम श्योर के अब वो टीम वापसी की कोशिश करेगी, क्योंकि अब जहां पर फासला खड़ा है इससे ज्यादा अगर बढ़ा तो फिर पाटा नहीं जा सकता। अभी भी ऐसी जगह पर है जहां इस फासले को खत्म किया जा सकता है। 10 मिनट से कम समय बाकी है पहले हाफ में। 22-4 की एक तरफा लीड है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के पास। The Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth has already won 1 match. They have beaten the lovely professional university 38-28 in their opening match. This one is a very difficult encounter for them. Raiding now for the GNDU is Vijay Narwal, the player who substituted Jatin Fogat. Tackled by the right corner. A thigh hold there. 1 point, Mahatma Gandhi. तो जतिन फोगाट सब्स्टिट्यूट कर दिए गए हैं, शायद उनकी अब जरूरत नहीं है इस मुकाबले में बहुत ज्यादा, जब तक ये फासला इसी तरह का बना हुआ है। रनिंग किक लगाने की कोशिश, और इस कोशिश में कामयाब नहीं हुई क्योंकि फासला थोड़ा सा था। एक बार फिर प्रयास, अच्छी रेड्स करते हैं आकाश नैन, और खासतौर से जर्क है इनके फुटवर्क में, और उसके झांसे में लाने की कोशिश करते हैं डिफेंडर्स को। Ram Narayan again into the raiding. Now the defense dare not try to tackle him, especially ahead of the balk line, where all of us thought that the tackle was successful. Suddenly his 1 foot was visible that crossed the midline, and 5 out of 6 defenders had to go back to the bench. And look at the defense. Now they are not even going close to the raider. 2 हाथ और 1 पैर को तो किसी तरह से बांध लिया था, लेकिन 1 पैर कहां से निकल गया
शायद डिफेंस को पता भी नहीं चला। 5 पॉइंट लेकर के आए थे एक रेड में और इस समय रेड पर हैं आजाद सिंह, जिन्होंने रेड की शुरुआत की थी। बहुत ही खूबसूरती के साथ 2 पॉइंट लेकर के आ गए एक ही झटके में आजाद। तो चलिए इन 2 पॉइंट्स के सहारे फासला थोड़ा सा कम जरूर हुआ, लेकिन अब भी बहुत बड़ा फासला। क्या बढ़िया हैंड टच किया और यहां बाहर कर दिया प्रशांत कुमार राठी। While on the court number 2 in the women's category, the Kurukshetra University, a very strong team, has beaten the Mangalore University 52-24 by a massive margin of 28 points. While a running hand touch claimed by the Kashi Vidyapeeth raider on the right corner. Look at that. Mahatma Gandhi. So deep. The left corner was only a mute spectator. Perhaps taking it a little easy now, the GNDU Amritsar, and they can afford to do that for a couple of minutes. Not for long. Ram Narayan raiding once again. Ram Narayan tackle this time. काठ की हांडी बार बार आग पे नहीं चढ़ती है संजय दा। बिल्कुल अगर आप चढ़ाएंगे तो पहली बार में ही उसका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन राम नारायण का अगर आप जिक्र करें तो बढ़िया रेडर हैं। थोड़ा सा स्किल अगर अपनी मांझ लें, तराश लें, तो शायद उनमें तमाम गुण शामिल हैं एक शानदार रेडर के। ये सुपर टैकल की सिचुएशन है। 3 डिफेंडर मौजूद हैं और 3 में से एक को टच किया नैन ने, बाहर किया, और अब सिर्फ 2 डिफेंडर। तो ये सिचुएशन पहली बार आई है। क्या गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर इस मुकाबले में पहली बार ऑल आउट होगी? देखना होगा। सिर्फ 2 खिलाड़ी बाकी हैं उनके समय। Took their opponents a little too lightly after that all out, after that massive 5-point raid. And it often happens in Kabaddi. When you're leading by a big margin, then you tend to, be a little more complacent in your raids and defense, especially in defense. Jersey pulled there by the raider onto the defender. Looks like a super tackle to us. Super tackle given by the officials. Super tackle, so 2 points. much needed points and 1 much needed revival for the GNDU Amritsar. तो आकाश नैन बाहर गए। जर्सी भी उन्होंने खींचने की कोशिश की थी डिफेंडर की। शायद अगर कामयाब भी होते तो उन्हें उसका लाभ ना मिलता। और यहां रिंकू रेड पर पूरा समय उन्होंने व्यतीत किया आराम के साथ। अभी खड़े हुए हैं, 10 सेकंड अब भी बाकी है। उनकी नजर घड़ी पर है क्योंकि लीड अच्छी खासी है 15 पॉइंट्स की। और सबसे पहले वॉक लाइन को क्रॉस किया और लौट गए। क्या डू और डाई का इंतजार कर रहे हैं रिंकू एक बार फिर? Absolutely, this is a do or die raid. Rinku was counting the empty raids of GNDU. It's a good combination tackle initiated by the captain Arpit Saroha. 1 point. MG University. Playing a much better game. Come, The Mahatma number Gandhi 1. Kashi Vidyapeeth in defense, Sanjay. The calling is good among the defenders. धीरे धीरे जो फासला है उसे कम करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। और सिर्फ 2 खिलाड़ी बाकी हैं। एक बार फिर ऑल आउट के नजदीक हैं। ब्लॉक करने के लिए गए थे और यहां पर क्या जर्सी पुल इंटेंशनल था? बिल्कुल इंटेंशनल माना गया है क्योंकि जर्सी पकड़ करके आपने रेडर के मोमेंटम को तोड़ दिया है और इसीलिए ये जर्सी पुल माना जाएगा। नुकसान हुआ। अब अकेले खिलाड़ी हैं। अगर ये पॉइंट लाए तो ठीक, नहीं तो ऑल आउट का खतरा। रजनीश जो कि टीम के कप्तान भी है। The last man standing is the captain. The first order of the business is to avoid the all out. No, he cannot do that. The all out reversed by the Kashi Vidyapeeth in 6 minutes. So the average, Sanjay, remains the same. 1 all out every 5 or 6 minutes, no matter which team gets all out. तीसरा ऑल आउट हमने देखा है पहले हाफ में और अभी भी 4 मिनट का समय बाकी है। और 25-15 ये है स्कोर लाइन। 10 पॉइंट का फासला। रेड पर हैं आजाद सिंह। आजाद सिंह ने आज रेड की शुरुआत की थी। लंबी किक लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन शायद फुटवर्क और तेज हो तो आजाद सिंह के लिए बेहतर हो सकता है। रेड पर आए हैं इस समय विजय नरवाल। विजय नरवाल आए भी, विजय नरवाल गए भी।
There was a big jersey pull, but it was 1 point number MG one, not University. intentional. B, the tackle was not done because of that jersey pull. Was already tackled. Was surrounded by 3 defenders. So we are seeing a mini comeback by the MG Kashi Vidyapeeth. While that firepower, that spark looks missing from the GNDU Sanjay that we saw in the first 10 minutes. आकाश नैन 6 के डिफेंस में बोनस ले सकते हैं, लेकिन समय हो गया है, वापस लौटना होगा। टक टक की आवाज आए तो आपके कदम खुद ब खुद मिडलाइन की तरफ चले जाने चाहिए, अन्यथा 30 सेकंड की घड़ी आपने क्रॉस की तो आप बाहर चले जाएंगे। Ram Narayan, you will remember the name. Jersey number is 7. He got 5 points in one raid. And these small little moments, well, they make you famous. We know a player called MGR, Mahinder Ganesh Rajput. Still remember him for that all-out raid. This is the do-or-die raid. Do or die. Tries for that bonus, then goes for the toe touch, goes to the other corner. The defense is playing a patience game with him. Now they break the patience. Oh, this is a risky tackle. बिल्कुल खतरनाक टैकल था। आकाश नैन की तारीफ इसलिए भी करनी चाहिए कि वो रेड करते समय कई बार पीठ दिखाते हैं, संभवतः जानबूझ करके वो चाहते हैं कि टैकल करने की कोशिश की जाए, लेकिन यहां पर चलिए कामयाब नहीं हो पाए। 1.5 मिनट बाकी पहले हाफ में। रिंकू एक बार फिर आए हैं रेड के लिए और लगातार राइट कॉर्नर पर प्रेशर बना। रिंकू उसी एरिया में खेलते हैं, बस उतना ही खेल करके वो वापस लौट जाते हैं अपना समय व्यतीत करके। आजाद सिंह एक बार फिर। The lead still in the double digits, Sanjay. Little over 1 minute remaining, and it is a do-or-die raid, and we are seeing Ram Narayan for the first time doing a do-or-die raid. The bonus is on. His hands are not stretched. Now, he goes deep and goes out. It's a good defense. बहुत अंदर चले गए थे, बहुत अंदर चले गए थे राम नारायण। और जब आप इतने अंदर चले जाएंगे, एक तो मुझे ये नहीं समझ में आया, अगर वो डू और डाई के स्पेशलिस्ट नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, तो शायद डू और डाई में उन्हें कुर्बान नहीं किया जाना चाहिए था। और 15 पॉइंट्स की लीड अब घट करके 10 पॉइंट की बची है और संभवतः 2 रेड हम और देखेंगे हाफ टाइम से पहले। समझाया जा रहा है, वार्निंग दी गई है यहां पर किशन यादव को, और अब संभवतः आखिरी रेड होगी हाफ टाइम से पहले की। आकाश नैन एक बार फिर रेड पर और 6 का डिफेंस है। आकाश नैन चाहें तो बोनस ले सकते हैं, लेकिन बोनस लेना तो दूर, ये बॉक लाइन क्रॉस करने के लिए भी उनके लिए थोड़ा मुश्किलें हैं, क्योंकि कितना हाई लाइन डिफेंस खेल रहा है, बिल्कुल भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। बोनस तो कम से कम दिखाई नहीं देता कि बोनस टीम देने के मूड में है। लगातार अपने पैरों पर शफलिंग करते हुए, और इसके साथ ही ये पहला हाफ इस मुकाबले का समाप्त हुआ। 27-17 10 पॉइंट्स की लीड है, बढ़िया लीड है ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के पास, लेकिन ये मुकम्मल लीड कतई नहीं हो सकती। ये ऐसी लीड कतई नहीं हो सकती जिसे पाटा ना जा सके। तो दूसरा हाफ इस मुकाबले का बेहद रोमांचक होने वाला है। हम आपको ये बता दें कि ब्रेक टाइम में क्या सिचुएशन है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर 27 एंड महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ 17। तो ये कहानी है इस मुकाबले की। 10 पॉइंट का फासला, और इस फासले को आसानी के साथ बांटा जा सकता है, बशर्ते कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ दूसरे हाफ में कुछ कर गुजरें। तो इन लम्हों पर, इन दृश्यों पर एक नजर दौड़ा लीजिए, अपनी यादों को ताजा कर लीजिए। पहले हाफ की कहानी किस तरह से आगे बढ़ी है, इसका एहसास कर लीजिए। जतिन आज शुरू में ही टैकल हुए और उसके बाद जतिन को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। जतिन को सब्स्टिट्यूट इसलिए किया गया कि अच्छी खासी लीड थी टीम के पास, और जतिन की आज शायद बहुत जरूरत नहीं थी। जतिन को प्रोटेक्ट करना भी टीम की जिम्मेदारी है, क्योंकि आने वाले मैचेस में, सेमीफाइनल में, उसके बाद फाइनल में जतिन की शायद सबसे ज्यादा जरूरत होगी। एक बहुत ही शानदार रेडर हैं टीम के। राम नारायण की वो रेड जिसमें वो एक साथ 5 पॉइंट लेकर के आए थे, यादगार बन गई है। और आजाद सिंह
के अलावा आकाश नैन लगातार इस समय प्रयास करते हुए, और ये वेस्ट होल्ड देखिए, कितना बढ़िया वेस्ट होल्ड। यहां पर जगह नहीं मिली थी, जर्सी खींचने की कोशिश की, मोमेंटम तोड़ा था। जब आप इंटेंशनल जर्सी खींचते हैं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होती है। और 3 मिनट अब भी बाकी हैं। हमारे साथी सुनील तनेजा अपने विशेषज्ञ उदय कुमार के साथ मौजूद। उदय कुमार जो कि इंडियन नेशनल टीम के कोच रह चुके हैं फॉर एटलीस्ट 10 इयर्स। उदय कुमार साहब, वेलकम टू द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। सर थैंक यू, गुड मॉर्निंग फॉर ऑल। आप नेशनल टीम के कोच लंबे टाइम तक रहे हैं, आप कबड्डी लीग में कम से कम 4-5 टीम्स के कोच रहे हैं। यहाँ पर आकर यूनिवर्सिटी लेवल का कबड्डी देख के कैसा फील हो रहा है? एक्चुअली सर, ये खेलो इंडिया ये प्रोग्राम जो इंडियन कबड्डी के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, काफ़ी प्लेयर्स ये प्लेटफॉर्म से जो नेशनल टीम में आया, जो प्रोफेशनल लीग में काफ़ी परफॉर्म किया, जो अच्छा प्रदर्शन दिया, ये एक्चुअली जो यंगस्टर्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और स्पेशली 7-8 साल, पिछले 7-8 साल में कबड्डी एकदम से इंडिया का नंबर 2 स्पोर्ट बन चुका है। और यहाँ भी हम देख रहे हैं जो सबसे बड़ी क्राउड है जैन ग्लोबल कैंपस में, वो कबड्डी के फील्ड में देखने को मिलती है। एज अ कोच, हाउ हैप्पी यू आर टू सी दैट? सर एक्चुअली कबड्डी ऐसे है, कबड्डी इंडिया में कोई भी स्टेट में हो, कबड्डी के लिए व्यूअर्स है, ये प्लेयर्स के लिए एक अच्छा मोटिवेशन है, जो ऑर्गेनाइजर्स के लिए एक अच्छा मोटिवेशन है। इसलिए कबड्डी आगे भी ये व्यूअर्स का नंबर बढ़ते रहेंगे। ये गेम इंडिया का ये प्राउड गेम हो जाएगा। आने वाला जो फ्यूचर में जो ओलंपिक मेडल देने वाला एक गेम होगा। बिल्कुल। और हमने इनफैक्ट वी हैव सीन सम सीरियस स्किल्स एज वेल। हमने एक 5 पॉइंट की रेट देखी, वी हैव सीन सम डुबकीज, कल एक प्लेयर ने जंप भी लगाया था। सो इवन एट द यूनिवर्सिटी लेवल इतने अच्छे बड़े मांझे हुए स्किल्स देखना भी बड़ी अच्छी बात है। जो नेशनल स्टैंडर्ड्स का स्किल ये मैच में हमको दिखाई दे रहा है। प्लेयर्स ऐसे मैच्योर्ड प्लेयर जैसे खेल रहा है। रियली ये इन लोगों के लिए, जो इंडियन टीम के लिए जो प्रोबल्स को सेलेक्ट करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। उन लोगों के लिए एक अच्छा चांसेस मिल रहा है ये खेलो इंडिया जैसे टूर्नामेंट में। वेल, डेफिनेटली द फॉर्मर नेशनल कोच हिमसेल्फ फील्स की नेशनल टीम में और आगे लीग्स में जाने के लिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म एंड द लॉन्च पैड। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो ब्रेक के बाद मुकाबले की शुरुआत। 27-17 की लीड गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के पास। लेकिन इस बात का ख्याल रखना होगा उन्हें कि लगातार ये लीड कम हुई है, तो इस लीड को बना करके रखना चाहिए अगर वो सेमीफाइनल में अपनी बर्थ को कंफर्म करना चाहते हैं। नंबर 4 विजय नरवाल जो कि रेड पर थे, और यहां पर आकाश नैन। लेकिन इससे पहले विजय को बुलाया गया। विजय भी सब्स्टिट्यूट होकर आए हैं। उन्होंने तुरंत कान पर हाथ रखा कि मुझसे गलती हुई है, मैं नियमों का पालन करूंगा। Both the number 4s, Prashant Kumar Rathi and Vijay Narwal, given a warning. The umpire was in fact about to pull out the cards from his pockets as both the players touched their ears. That is what we mean by the Indian culture. If you have committed a mistake, say sorry. Say sorry very humbly. As we see, even the senior most players, Sanjay, the likes of Joginder Narwal, we have seen even Chiralath and the senior most players touching their ears and apologizing to the officials. बिल्कुल प्राचीन परंपरा को आत्मसात किए हुए कबड्डी का खेल, और रिंकू ने अचानक एक्सेलरेट किया, लॉबी में चले गए बहुत ही शानदार तरीके से, और उन्होंने बाहर किया यहां प्रशांत कुमार राठी को,
और इस तरह से अब भी 10 पॉइंट का फासला 28-18, यानी कि हाफ टाइम के बाद 1-1। The lead of 10 points. The raider, Azad Singh, goes back empty-handed. This is Rinku, raiding for the Guru Nanak Dev University, one of the substituted players. And I was talking to the former Indian national coach, Mr. J. Uday Kumar. I asked him, sir, कोई player पसंद आए? And he said, sir, जिन players का नाम टीवी पे ले चुके हैं आप, उनको मैं पहले ही पसंद कर चुका हूँ. So he is one of the coaches in the professional Kabaddi League. We have seen plenty of talent scouts. Oh, how good was that escape? First a bonus and then Bonus that plus 1 point MG University. flying hand touch. Look at that during his escape. 2 points for the Kashi Vidyapeeth. So not only for the national team, Sanjay, but for the league, which is very popular. It's a very, very good launch pad because the talent scouts are here. They are watching you live on television, on the digital platform, and some of them are right here in the stadium as well. बिल्कुल, और टैलेंट हंट तो अब मूल मंत्र हो गया है भारतीय खेलों की पृष्ठभूमि का, और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जब आप बिल्कुल छोटे बच्चों को सर्च करके लाते हैं और उन्हें एक एक्सपोजर देने की कोशिश करते हैं, उन्हें सजाते हैं, संवारते हैं, तो फिर वो एक मजबूत फसल में क्रिएट होते हैं। डू और डाई, राम नारायण डू और डाई में हैं और बिना पॉइंट के वो लौट नहीं सकते। डू और डाई में राम नारायण को जाने की ज़रूरत शायद नहीं है, लेकिन उनका बोनस पक्का था और इसलिए वो बोनस लेकर के आए। पिछली बार डू और डाई में उनका शिकार हो गया था। तो मुझे लगता है कि जो आपके अच्छे रेडर्स हैं और शायद डू और डाई के एक्सपर्ट नहीं हैं, उन्हें डू और डाई में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डू और डाई हमें मिलती नहीं देखने के लिए। Come. Number 12. Some lousy defense there. Once again by the Guru Nanak Dev University defender, Jatin, number 12. While the raider Jatin Fogart, was benched in the first half. This is Rinku, the left raider. Lead now only 8 points. And we are saying only, 2 or 3 players were there in his vicinity. We're saying only because in 16 minutes, the lead of 18 points practically means nothing in the sport of Kabaddi. बिल्कुल, राम नारायण की रेड सबको याद होगी। अगर एक वैसी रेड हो गई तो फासला कहां चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आकाश नैन अंदर चले गए थे। राम नारायण ने अचानक से उनके सामने जाकर के ब्लॉक करने की कोशिश की। पूरी सफाई के साथ तो ब्लॉक नहीं हुआ, लेकिन बाकी डिफेंडर्स का सपोर्ट टाइम लिया गया और इस तरह से बाहर जाना पड़ा आकाश नैन। 1 point Guru Nanak Dev. Let us remind you that this is a Pool B encounter in the men's category. Guru Nanak Dev University, playing in red and white, have won 2 matches already, while their opponents, the Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, in blue and white, have won 1, lost 1. So it's a must-win game for the Kashi Vidyapeeth. That will keep their chances of going to the semis alive. Will not guarantee it, because in the last match of this pool, okay, this is do or die. We'll come back to those permutation combinations again. Again do or die, again Ram Narayan, the do or die raider. लगातार डू और डाई में राम नारायण आ रहे हैं। 6 का डिफेंस है, बोनस ले सकते हैं, लेकिन बहुत हाईलाइन डिफेंस खेलता हुआ बोनस की इजाजत नहीं दे रहा। घिर गए राम नारायण, दोनों पैर अपने खुद ब खुद वो पकड़ में दे गए डिफेंस की, और वहां पर मौजूद थे 11 नंबर की जर्सी पहने हुए किशन यादव और इसके अलावा अर्पित सरोहा, जो कि टीम के कप्तान हैं, और उन्होंने बढ़िया पकड़ बनाई राम नारायण पर। It's a good jump, but a wasted opportunity. The jump was really, really good. Look at that. It was a good lion jump, but 2 defenders from each side, they were fairly active. 1 point Guru Nanak The Dev. jump went in vain as the raider goes back to the bench, talking about Azad Singh. This is Rinku. रिंकू लगातार रेड कर रहे हैं और
जतिन आज सब्स्टिट्यूट कर दिए गए हैं, तो जतिन की गैर मौजूदगी में रिंकू पर काफी जिम्मेदारी, लेकिन फासला भी 10 के आसपास ही बना हुआ। आकाश नैन 5 का डिफेंस है आकाश के लिए। आकाश लोहा लेने में यकीन रखते हैं, अंदर चले जाते हैं कई बार और डिफेंस को चौंकाना भी चाहते हैं, लेकिन इस रेट में लगता है वो सुरक्षित वापसी ज्यादा पसंद करेंगे। लोहा लेने में तो आप भी यकीन रखते हैं। दादा वॉज हैविंग अ टैबलेट इन द मॉर्निंग। आई सेड व्हाट इज दिस? बोले मैं लोहा ले रहा हूं। मैंने बोला कैसे? बोले आयरन की टैबलेट है ये। बिल्कुल, ये हकीकत का लोहा लेते हैं, मैं टैबलेट का लोहा लेता हूं। और इस बीच 6 का डिफेंस है यहां पर, और बहुत बढ़िया अचानक से मुड़े, अचानक से टर्न किया और लेफ्ट कॉर्नर को बाहर कर दिया। बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स था यहां पर और कोई जवाब नहीं था वहां पर राजकुमार यादव के पास। टच किया गया, वो बाहर हो गए। Point for Vijay Narwal. There is a substitute happening for the GNDU. Toll out number to 2 12 in. Goes out. Toll out to 2 in. Number 2 comes in. It's a Ravi Tehlan. We have seen him earlier also. There he is, number 2, substituting Jatin. So both the Jatins now on bench, Sanjay. While the lead is still very comfortable, as long as it stays around 8, 9 or 10, the GNDU coach will not mind it. आकाश नैन 6 के डिफेंस में रनिंग किक लगाने की कोशिश, लेकिन बढ़िया प्रोटेक्ट किया अपने आप को और उपहार में दे गए वहां पर कप्तान रजनीश। अपना तो खुद ही खुद शिकार करवा बैठे, बैक होल्ड करने के लिए गए थे और सिर्फ रजनीश नहीं गए बल्कि उनके साथ नंबर 4 की जर्सी भी बाहर निकल गई विजय नरवाल के रूप में। तो 2 पॉइंट्स एक साथ मिले यहां पर और अब फासला देख लीजिए 8 पॉइंट्स का रह गया है और 11.5 मिनट का वक्त बाकी इस मुकाबले में। This is what we have been talking about. Lousy defense from the GNDU. Luckily for them, their raiders have been scoring. That is why they are still in the lead. This is a good kick. Some acrobatic skills shown by the raider Rinku. 1 point Guru Nanak Dev. Kicking Arpit Saroha, the opponent captain, was playing at the right corner. Lead still 9. This is the reason they are still leading, because their raiders have been scoring consistently. While their defense, okay, that is a good running hand touch. Reminds us of left raiders like Deepak Nivas Hoda or V. Ajit Kumar. Time out. Time out. Requested by the Mahatma Gandhi Time Kashi out. Vidyapeeth now. MG University. While the score difference, Sanjay, 8 points, over 10 minutes to go. That means both the teams are going to get at least 10 to 12 raids each. बिल्कुल अभी काफी समय है, 10 मिनट का वक्त काफी होता है कबड्डी के खेल में और 8 पॉइंट्स की लीड है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वापसी कर सकते हैं इस मुकाबले के अंदर। अगर इस समय उन्होंने वापसी की तो सेमीफाइनल की संभावनाएं अपनी जगह लेंगे। एक मुकाबला उन्होंने जीता है, अगर ये दूसरा जीतते हैं तो सेमीफाइनल की संभावनाएं उनकी बन सकती हैं और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अगर जीते तो निश्चित तौर पर ये उनके लिए बहुत ही बढ़िया होगा और सेमीफाइनल की बर्थ तय हो जाएगी। रिंकू 7 के डिफेंस में लगातार अपने फुटवर्क से शफलिंग करते हुए रनिंग बोनस का प्रयास, लेकिन कोई तस्दीक नहीं मिली निर्णायक से। A difference of 8 points and 10 minutes remaining. If GNDU wins, they are definitely through to the semis. If Kashi Vidyapeeth loses, they are definitely out of the contention, more or less out of the contention. But if they win, then this group becomes very, very, very interesting. Even if they lose, even if the Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth lose, and in the next match, LPU beats Dr. C.V. Raman University, then we will have 3 teams with 2 points each, with 1 victory each. The team with the better score difference will make it to the semi-final. So this group is wide open. Talking about Pool B, while Pool A was done and dusted, decided yesterday, where Kota University and the university from Bhiwani have already made it to the semis. Semis will be played tomorrow, and the final
of both the category, men and women, will be played on the 3rd May. ये डू और डाई, और एक बार फिर रामनारायण डू और डाई में, लगातार डू और डाई रेड्स में आ रहे हैं, और इस बार फिर उनका शिकार हो गया। बहुत ही बढ़िया पकड़ बनाई लेफ्ट कॉर्नर पर, चीते सी चपलता दिखाई दी है इस अटेम्प्ट में। बिल्कुल अपनी जगह पर खड़े थे, अचानक ऐसे लगा कि जैसे उन्होंने जबरदस्त छलांग लगाई राजकुमार यादव ने, और बहुत बढ़िया टैकल किया रामनारायण। Do or die here as well, and this is a super tackle situation. If you do not take a point, the GNDU will automatically get 2 points. Do or die in a super tackle. Oh, what was that necessity of going for this tackle? Rinku, who's a raider, not a defender. तो चलिए पॉइंट्स और कम हो गए, अब सिर्फ 6 पॉइंट का फासला, यानी कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने सही समय पर वापसी का संकेत दिया है। 6 पॉइंट का फासला है और ऑल आउट का खतरा मंडरा रहा है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर पर, यानी कि अब ये मुकाबला तकरीबन बराबरी का हो सकता है। लगातार अपने फुटवर्क पर शफलिंग कर रहे हैं, लेकिन और कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। अब उन्हें वापस लौटना पड़ेगा, बोनस की कोशिश, लेकिन कोई असर नहीं। Okay, if they give an all out now, they will get 4 points. The deficit will be of 2 after that. But mind you, a super tackle will increase the lead for Guru Nanak Dev University to 8 points. And it looks like a super tackle. It is a strong ankle hold by the right corner. Excellent skills. जल्दी आओ। रन। यश हुडा वहां पर मौजूद थे राइट कॉर्नर में, बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने पकड़ बनाई और एक सुपर टैकल कर दिया। सुपर टैकल के 2 पॉइंट्स, और इस वजह से थोड़ा सा फासला इंप्रूव हुआ है, लेकिन नजदीक आता हुआ लगातार। रेड पर विजय नरवाल और यहां शिकार हो गया विजय नरवाल का। इससे पहले भी रेड पर गए थे, और एक बार फिर सिर्फ 2 खिलाड़ी बचे हैं। सुपर टैकल की गुंजाइश भी हो सकती है और ऑल आउट का खतरा भी हो सकता है। Yashuda on the right corner, Ravi Tehlan on the left corner. Both are good defenders. The raider will have to be very, very careful. It's Azad Singh. It's not a do or die raid. You can afford to go back empty-handed. Yes, that is a smart strategy. Try to catch them while they're on raiding. Ravi Tehlan now goes for the raiding duties. रवि तेहलान पिछली रेड में भी इन्होंने पूरा समय काटा और उसके बाद बोनस का प्रयास किया। एक ही एरिया में खेलते हैं, लेफ्ट चाहते ही नहीं, लेफ्ट में ही खेलते हैं, राइट में चाहते नहीं। और यहां अचानक आकाश नयन ने ट्विस्ट किया। जैसे ही देखा कि ट्रेलान उन पर आ रहे हैं, उन्होंने तुरंत ट्विस्ट किया, उनके कंधों का इस्तेमाल किया, अपने शरीर से दूर पुश किया और कामयाबी के साथ मिड लाइन को क्रॉस कर गए। The last man standing now, Yashuda, the defender. And he will have to go back to the bench. It's an all-out by Kashi Vidyapeeth on the GNDU Amritsar. The score will now become 32-35. The difference of 3 with more than 5 minutes to go, Sanjay. अच्छी वापसी की है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस ने, और 7 का डिफेंस है आकाश नयन। एक बार फिर आकाश नयन के पैर पकड़े गए और बढ़िया न सिर्फ पैरों को पकड़ा बल्कि पीछे खींचा, जिससे कि आकाश के मिड लाइन क्रॉस करने की किसी भी संभावना को नकारा जा सके। फासला अब घटकर सिर्फ 4 पॉइंट्स का रह गया है, और ये मुश्किलों की बात हो सकती है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के लिए, जो इससे पहले दोनों मैचेस जीत चुके हैं। Yes, the Raider took a bonus, so the difference now not 3 but 4 points. And we have seen that consistently, that after that 5-point raid, after that all-out, the GNDU took the match very lightly. The seriousness was missing after that. Because the Raiders were scoring consistently, a point here and there. That is why they could maintain their lead. While the Kashi Vidyapeeth, for them it is almost a must-win match. They have shown much more aggression and eagerness.
So a very exciting and interesting contest on cards. Last 5 minutes remaining. If GNDU wins, they will definitely play the semis tomorrow. Even if they lose, there is a high chance. There is a high chance that they will be there in the top two in this group. रिंकू एक बार फिर, अब तो लीड बची ही नहीं है, 4 पॉइंट्स की लीड है, 5 मिनट का वक्त बाकी है, कुछ भी संभव है इस दौरान। रिंकू समय काट रहे हैं, लेकिन ये समय काटना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आपके पास सब पहले से लीड रही नहीं, इस बात का ख्याल रखना होगा। आजाद सिंह 7 के डिफेंस में, और डिफेंस बहुत ही ऊपर आकर खेल रहा है दोनों टीमों का। बोनस की एक कोशिश जरूर थी लेफ्ट कॉर्नर के नजदीक से, यहां टो टच का प्रयास, लेकिन दोनों बार ही उन्हें सफलता नहीं मिली। ब्लॉक करने आए थे, लेकिन कम से कम 2 पॉइंट लेकर के गए। कप्तान रजनीश बाहर गए, और सिर्फ रजनीश बाहर नहीं गए, उनके साथ साथ रवि पहलान भी बाहर गए। तो अब फासला 2 पॉइंट्स का। What not to do in the dying moments is what GNDU Amritsar is showing us. What not to do. You were leading by 15, 17 points, and only because of those silly errors, the lead is now down to 2. We don't mind that. We want to see such interesting matches. Here is Ram Narayan, who showed us that 5-point raid. But honestly, after that, Sanjay, I don't remember if Ram Narayan took any touch point. The only scoring he did after that was a bonus here and there. And this is a do or die. If Rinku does not score, the score difference will be only single point. बिल्कुल मुश्किलों का समय है अब गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के लिए। बोनस की कोशिश कर रहे हैं, और बोनस की कोशिश में ये सुपर रेड होगी, ये सुपर रेड होनी चाहिए। बोनस तो उनको मिला ही है। तो बढ़िया तीन मिनट का वक्त बाकी। 34-39, यानी कि 3 पॉइंट सुपर रेड हुई थी वो। तो इस सुपर रेड ने, रिंकू की सुपर रेड ने थोड़ा सा फासला फिर बढ़ाया है। 34-39 ये है स्कोर लाइन अभी। और हमें खेद है कि कुछ तकनीकी व्यवधान की वजह से बीच में कुछ लम्हों के लिए आप हमारा प्रसारण नहीं देख सके। 34-39 और यहां 7 का डिफेंस है। 39-34, 5 पॉइंट्स का फासला, 3 मिनट से कम का वक्त बाकी। और इस समय रेड पर रिंकू के सामने 5 डिफेंडर्स। Scored a super raid while there was a very small electrical failure after his raid. We apologize again for that. But the real current was given by Rinku. The real electrical current was given by Rinku to the MG Kashi Vidyapeeth, who was on the verge of making a comeback. The score difference was only 2 points. So all thanks to that super raid by Rinku, the score difference is 5. And with 2 minutes remaining, if GNDU does not make any blunder during the defense, as they have been making, they should see this through. A risky tackle, a couple of points for sure will be taken. Bonus and a touch point. They won't mind these 2 points, no matter how they come. बोनस प्लस 1 पॉइंट। बिल्कुल, तो ये 2 पॉइंट्स बेहद अहम साबित होने वाले हैं। फासला एक बार फिर 2 पॉइंट्स पर जाकर रुक गया है। 2 मिनट से कम का वक्त बाकी है। रिंकू एक बार फिर रेड में, 6 के डिफेंस में रिंकू बोनस की तलाश में है, लेकिन हाई लाइन डिफेंस बोनस की इजाजत नहीं देता, और रिंकू भी कोई स्ट्रगल करना नहीं चाहते, अंदर जाना नहीं चाहते। 2 पॉइंट्स की लीड से ऐसा लगता है वो संतुष्ट हैं।
लेकिन उन्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि Time out. आने वाला वक्त आसान MG नहीं हो सकता। University. यहाँ टाइम आउट लिया है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने। It's a very risky strategy, Sanjita, because we will see minimum of a 4 raids. Okay, this clock tells us 119, while the other clock, the official clock, look at the screen, says 132. If that 132 clock is right, Sanjita, that means we will have at least 4 raids. 2 for the MG Kashi Vidyapeeth. And with the score difference of just 2 points, playing safe by Rinku was a big risk taken. And before him, those 2 points leaked in the defense. Well, you cannot do that during these dying moments. Yes, the time remaining is 132. That means a minimum of 4 raids No more time are out. going to happen. 1.5 मिनट का वक्त बाकी। क्या इस मुकाबले की तस्वीर बदलेगी? आकाश नैन 5 का डिफेंस है और बढ़िया टैकल, बहुत ही बढ़िया। थाइस पर गए, डाइव किया, कोई मौका नहीं दिया आकाश नैन को वहां से लौटने का कप्तान रजनीश ने। और बढ़िया टैकल, बढ़िया डिफेंस, 1 पॉइंट 1 ऑफ। point, Guru Nanak Dev. Good defense after a long time we have seen from the GNDU. And this is a do or die. Bonus is off. If Rinku does not score, score will be 38-40 with 2 more raids to go. He will have to score. विड्रॉन डिफेंडर के तौर पर आजाद सिंह खड़े हुए हैं, वो रेडर हैं टीम के। सिर्फ 4 खिलाड़ी यानी कि 2 चेन, और यहां पर जाते जाते कितने पॉइंट्स? सिर्फ इकलौता पॉइंट। ऐसा लगा कि कम से कम 2 का टच हुआ है, कम से कम 2 शिकार हुए हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ 1 पॉइंट दिया गया। संभवतः किसी सलाह मशवरे के लिए दूसरे पॉइंट की संभावना दिख रही थी सुनील। I think he made a running hand touch, Sanjita, on the left corner, and after that he was dashed. And yes. The trio, the Trimurti, is asking one more defender to go out of the court. Yes, 2 points given. Now the score difference of 5 points with less than 1 minute remaining. This has to be a big raid. Otherwise, this is GNDU who is smelling a victory here. 6 पॉइंट्स की लीड, 40-45 सेकंड का वक्त बाकी। 2 टच का प्रयास, जोखिम नहीं लेना चाहिए इस समय, मल्टी पॉइंट से बचना चाहिए। और यहां 1 पॉइंट लेकर One के point, गए। MG University. चलिए, अपनी जो लीड है उसे और कंसोलिडेट की, और अब 43 पर आ गए। 43 नहीं बल्कि 38-42, यानी कि अब फासला 4 पॉइंट का। लेकिन मुकाबला गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के खाते में जा सकता है। इसके बाद संभवतः 1 रेड और देखने को मिलेगी। रामनारायण क्या बॉक लाइन को क्रॉस करेंगे? अगर नहीं भी करते हैं तो कोई खास नुकसान नहीं, लेकिन हाँ, इतना तो कर ही सकते हैं। उन्होंने किया, वापस लौटे, और अब ख्याल सिर्फ ये रखना है डिफेंस को कि ये मल्टी पॉइंट रेड ना हो जाए। A running kick attempted. They will not mind it. That means we can see one more 1 raid. point, MG University. And Ramnarayan knows. Ramnarayan knows now they have won the match. There goes the final hooter. Ramnarayan will cross the balk line and he is safe. So is his university, his team. So with that, Guru Nanak Dev University, Amritsar, Punjab has won all the 3 matches in the pool stage. They have beaten Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth in a very interesting and a very close match by 42-39. And with these 3 victories, they have not just topped the Pool B, but they have also consolidated their place. They have confirmed their place in the
नरवाल बमुश्किल 2 या 3 रेड्स की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। This was the moment when we saw an advanced tackle by the GNDU, a successful advanced tackle. And that was an unsuccessful block, a couple of points taken by the raider of the Kashi Vidyapeeth. This was a good dive by the right corner, Captain Rajneesh. And it's a good escape using the lobby. A kick attempted on the left corner, and that's how it ended. The Guru Nanak Dev University beat Kashi Vidyapeeth 42-39. So Guru Nanak Dev University will play the semi-finals tomorrow, but the last semi-final, the last semi-finalist is yet to be decided. It could be LPU, it could be Dr. C.V. Raman University, it could be Kashi Vidyapeeth as well. Stay tuned to the live broadcast of the Khelo India University Games. Thank you.